मॅम प्लीज अनम्यूट करा मला. सर अनम्यूटच आहे. आवाज येतोय माझा? येस सर आता येतोय. ओके. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. स्क्रीन शेअर करून बघता. हो. स्क्रीन दिसतंय मॅडम? येस सर. स्लाइड शो अजून व्हायचं आहे. हा सर झालाय. सारिका. So good afternoon friends. Welcome back to the second session of our refresher course on 25th of August. For this session we have with us respected Dr. Ashish Linge sir. Sir, I welcome you on behalf of UGC HRDC Nagpur to the refresher course in life science. Friends, sir is currently working as research and statistics trainer and research consultant, working as assistant professor, training and placement officer with Department of Business Management, CP and Berar College, Nagpur since 2001. He has done his PhD in business management and pursuing another doctoral degree in economics. He has more than 19 years of teaching and training experience. About his achievements, he has delivered lectures in more than 800 workshops on research methodology and statistical analysis in more than 100 institutions across Vidarbha region. He has trained more than 6,000 PhD scholars till date, worked as a resource person in several faculty development programs, orientation programs, refresher courses, ICT workshops, IQAC workshops, and many more. He has conducted several workshops on campus recruitment programs, soft skills, resume writing, creating professional PPTs, emotional intelligence, etc. He is working as a trainer for pre-PhD coursework for 5 universities. His areas of expertise includes research paper writing, synopsis writing, questionnaire designing, statistical analysis, hypothesis formulation and testing, and many more in research and statistics domain. His proficiency in handling the following statistical softwares, to name few: SPSS, MS Excel, Jamovie, Meta Essentials, G Power, and few more.
So with this brief introduction, I once again welcome you, sir. And please, I request you to please guide the participants or enlighten them on a topic overview of biostatistics and its introduction. Sir, please. Thank you, Dr. Priti, madam. Before starting, I just want to make clear, madam, I am clearly audible. Yes, sir. Yes. Can you see my screen? Yes, sir. Slideshow view. Yes, sir. First slide is there. Right, ma'am. So that way, all set. Yes. Good afternoon, everyone. At the outset, I would like to thank NHRDC Academic Staff College and Dr. Preeti Dharmik, madam, for giving me an opportunity to put forward my views on biostatistics. Hereafter, I will be engaging total 4 sessions, and we are on to the first session, and I will be covering a research and statistics part. Before getting into the core presentation, uh, as Priti ma'am usually instruct me to use a combination of 2 languages, so I will use a combination of Hindi and English language because our focus will be more on understanding part. So we are going to have discussions for next 90 minutes on the topic, as you can see on the screen, that is biostatistics. And we are going to have an overview to biostatistics. Over here, we are just going to understand the framework of biostatistics, what basically biostatistics is and what typically it encompasses. So for next 90 minutes, we'll be having discussions on this topic. If you have queries in between, so I will keep my chat box open, and preferably I will like to take on your queries towards the end of our session. So for first 80 minutes or so, I will be speaking, and for the last 10 minutes, we'll be having discussions, and I will try to clarify your doubts if there are any. So with this backdrop, we are actually getting into the presentation, and I am starting my presentation with a caption, as you can read on the screen. And I got in fancy with this particular caption, which reads as, statistics are used much like a drunk uses a lamppost for support and not for elimination. And how true it is, means Vince Scully has, written this about 50 years back or so. And even I found it pretty relevant today. And I got in fancy with this particular caption. When I first time come across this particular caption, this is what I have experienced over the period of time. Means what Vince Scully is meant to say कि स्टैटिस्टिक्स को एक अलग तरीके से यूज किया जा रहा है। स्टैटिस्टिक्स को ना हम लोग एक सपोर्ट के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर स्टैटिस्टिक्स इज टिपिकली यूज फॉर गिविंग कॉस्मेटिक टचेस टू द रिसर्च प्रोजेक्ट्स, यू कैन से। मैंने बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स को देखा है कि दे बेयरली हैव अंडरस्टैंडिंग ऑन स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल कांसेप्ट्स एंड स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग, यू कैन से, बट स्टिल they keep on using those just to give some cosmetic touches or to decorate their PhD thesis or their research papers, you can say. But importantly, statistics is not meant for this purpose. Statistics is basically meant for giving deep insights into the phenomena or the research project at hand, you can say. So with this, we are getting into the contents. We'll just take a quick look over what we are going to discuss in next 90 minutes. I have configured my today's 90 minutes presentation into 3 apparent sections. The first part will be having discussions on overview of biostatistics, means basically what is biostatistics, what is statistics and all. In the second part, we'll be having discussions on descriptive biostatistics, you can say. And in the third section, we'll be having discussions on inferential biostatistics, you can say. So this way, we are going to address these 3 important core issues, and I will take utmost care that you must have some concrete takeaways after the end of this particular session, you can say. And I will like to request all the participants to keep your papers and pens ready, because we are going to have very serious and meaningful discussions. I am to give you some concrete takeaways from today's session, you can say. So please keep your papers and pens ready. So before getting into the first section, I will just like to talk few lines on how to enhance the quality of research project. क्योंकि हम लोग सब academicians है और research का हमारा पाला कब पड़ता है, means what are those particular platforms we typically exposed to research activities. First and foremost is obviously our doctoral degree, you can say, that is PhD I am referring to. Academicians है तो you know very well कि PhD has got its own significance in academic career, you can say. So almost all of us typically set a target to pursue or to get PhD, you can say. So
PhD करना है तो रिसर्च से पाला पड़ता है. द सेकंड पार्ट इज राइटिंग रिसर्च पेपर्स यू कैन से, एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग एंड पब्लिशिंग रिसर्च क्वालिटी रिसर्च पेपर्स यू कैन से. तीसरा जो पार्ट है, हम लोग स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं. पोस्ट ग्रेजुएशन के जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी डिसर्टेशन थेसिस होते हैं, खास करके फाइनल सेमेस्टर में, तो हम लोगों को उनको गाइड करना होता है. फिर हम लोग कुछ कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, वहाँ पे भी हमारा रिसर्च के साथ पाला पड़ता है. तो बेसिकली बात ये हो रही है, इवन मोदी साहब और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वो भी बात कर रहे हैं कि रिसर्च की क्वालिटी को लेके चिंता जता रहे हैं. इंडिया में वॉट एवर रिसर्च क्वालिटी हैज बीन जनरेटिंग, इट इज नॉट एट पार. दिस इज व्हाट ही बिलीव्स. एकदम ये मैक्रो लेवल पे बात ना करते हुए अगर माइक्रो लेवल पे भी बात करेंगे, अगर RTMNU के हम लोग VC सर की अगर बात करते हैं तो उनका भी एक एजेंडा ये है कि रिसर्च की क्वालिटी को एनहांस किया जाए. इवन आपका इमीडिएट PhD का जो सुपरवाइजर है वो भी बात करता है कि यार जो भी करना है ढंग से करो. मीन्स हर लेवल पे अगर क्वालिटी की बात हो रही है तो व्हाट हाउ टू एनहांस एंड हाउ टू अचीव दैट पर्टिकुलर क्वालिटी इन अवर रिसर्च प्रोजेक्ट्स. मैं 5 चीजें बता रहा हूँ जिससे रिसर्च क्वालिटी एनहांस करने में डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन हो सकता है. मुझे लगता है कोई भी रिसर्च एक्टिविटी जब हम लोग करते हैं, PhD का थेसिस हो या फिर रिसर्च पेपर का काम हो या फिर आप स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हो, या अगर आप PhD के सुपरवाइजर है तो आपके जो डाउनलिंक्स है, आपके रिसर्च स्कॉलर्स उनको गाइड कर रहे हैं, तो कोई भी रिसर्च की एक्टिविटी आप जब अंडरटेक करते हैं तो वो परफेक्ट तब तक नहीं होती जब तक आपको ये 5 चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग नहीं है. मैं एक एक करके लाइन से बता रहा हूँ. अगर आपको रिसर्च करना है तो आपको सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग चाहिए रिसर्च मेथोडोलॉजी का. Voice is not clear. Yes, There yes. is no bandwidth might be there. Hello. Ma'am, we can't catch your voice, ma'am. Sir, hello. जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, सर के तरफ से नेट का कुछ इशू है शायद. सर फिर से ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ा आप रुकते हैं. Okay, okay, ma'am. फ्रेंड्स, सर ज्वाइन होने तक आई विल गिव यू सम इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग सेमिनार. एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Your seminar will be from 31st of August. और सेमिनार का टाइम टेबल आज शाम तक मैं Moodle साइट में डिस्प्ले कर दूंगी, एंड इट विल बी अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट्स एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स पर्सन. 31 तारीख से अपने सेमिनार चालू हो जाएंगे. डे वाइज शेड्यूल कोणतं कोणाचं कधी आहे हे सगळे डिटेल्स Moodle साइट पे मैं अपलोड कर दूंगी आज के शाम तक. ओके, एंड यू हैव टू प्रिपेयर योर सेमिनार फॉर 8 minutes PowerPoint presentation. हेलो.
Yes, ma'am. Sir is back. ओके येस येस सर आवाज येतोय हो येतोय मॅडम. माझा आवाज येतोय तुम्हाला? येस सर सर रिसर्च मेथोडॉलॉजी वाली स्लाइड आहे चालू हो करेक्ट येस करेक्ट विजिबल सर आहे. हो व्हिडिओ नाही ठीक. दिसत आहे सर प्रेफरेबली व्हिडिओ ऑफ ठेवला तरी चालेल तर बँडविड्थचा प्रॉब्लेम येत असेल तर हां मे बी. येस ठीक आहे मी विदाउट व्हिडिओ कंटिन्यू करतो. ओके सर ओके मैडम. ओके विल प्रोसीड नाउ. हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रिसर्च की क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. वॉट एवर रिसर्च डॉक्यूमेंट्स वी टिपिकली प्रिपेयर, तो हाउ टू अचीव क्वालिटी इन आवर रिसर्च प्रोजेक्ट्स. तो मैं बात कर रहा था कि देयर आर 5 डिस्टिंक्ट इश्यूज कि जिसके ऊपर हम लोग अगर काम करते हैं तो क्वालिटी ऑटोमेटिकली एनहांस हो जाएगी. मैं बात कर रहा था 5 पॉइंटर्स की. उसमें पहला पॉइंटर है कि आप अगर कोई भी रिसर्च एक्टिविटी अंडरटेक करते हैं तो जब तक आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग नहीं है यू कांट अचीव क्वालिटी. रिसर्च मेथोडोलॉजी जो मेरी वन लाइन डेफिनेशन है वो ये कहती है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी टॉपिक सिलेक्शन से शुरू होता है और डेटा कलेक्शन पे आके ख़त्म हो जाता है. तो टॉपिक सिलेक्शन से लेके आपके डेटा कलेक्शन के बीच में जो भी स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हो. ये स्टेप जब हम लोग फॉलो करते हैं तो टिपिकली वी टॉक अबाउट रिसर्च मेथोडोलॉजी और ये आपका एक फ्रेमवर्क बना देती है. और ये रिसर्च मेथोडोलॉजी जनरली 3 इश्यूज को एड्रेस करती है एज यू कैन रीड ऑन द स्क्रीन. रिसर्च मेथोडोलॉजी एड्रेस करती है व्हाट, आप कौन से टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं. दूसरा व्हाई, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योर रिसर्च स्टडी. और तीसरी बात है हाउ. और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं रिसर्च डिजाइन की. सो आरएम बेसिकली एड्रेसेस दिस 3 इश्यूज 2W and 1H I typically reckon it as. मैं बात कर रहा हूँ कि आपको रिसर्च की क्वालिटी अगर एनहांस करनी है तो दूसरे जो सब्जेक्ट डिसिप्लिन है जिसका आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो है स्टैटिस्टिक्स. और आज जो हम लोग बात कर रहे हैं ये दूसरे मुद्दे की बात कर रहे हैं, यानी स्टैटिस्टिक्स बाद में आता है. जैसे मैंने आपको आरएम की वन लाइन डेफिनेशन बताई. आरएम शुरू होता है टॉपिक सिलेक्शन से और खत्म होता है आपके डेटा कलेक्शन पे. और जहाँ पे आरएम खत्म होता है तुरंत वहीं से स्टैटिस्टिक्स शुरू होता है. यानी एक बार आपका डेटा कलेक्ट हो गया, टिपिकली आप तो सब लाइफ साइंसेस के रिसर्च स्कॉलर्स है, तो ऑब्वियसली आप लेबोरेटरी में या फील्ड पे कोई एक्सपेरिमेंट्स प्लान कर रहे होंगे और वहाँ पे जब आप ऑब्जर्वेशंस के जॉटिंग्स लेते हो वही हम लोग डेटा कलेक्शन की एक्टिविटी कहते हैं. तो एक बार डेटा कलेक्ट हो गया तो उसके बाद स्टैटिस्टिक्स कम्स इनटू प्ले. स्टैटिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा एक मैंने ये ऑब्जर्वेशन किया है कि बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स को अभी भी स्टैटिस्टिक्स का अंडरस्टैंडिंग नहीं है. और एक जो सबसे बड़ी चीज़ आज हर एक रिसर्च स्कॉलर्स को मालूम होना ही चाहिए स्टैटिस्टिक्स के सेंस में बोल रहा हूँ मैं, कि आपके पास जो ऑब्जेक्टिव्स है और हाइपोथेसिस है और आपके हाइपोथेसिस को कौन सी टेस्ट लगती है, ये अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है. और आज मैं थोड़ा सा ये चीज़ एड्रेस भी करने की कोशिश करूँगा. तीसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि हर कोई रिसर्च स्कॉलर को मालूम होना ही चाहिए वो है आपके स्टैटिस्टिकल डेटा प्रोसेसेस का नॉलेज. मैं बात कर रहा हूँ स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स. कुछ सॉफ्टवेयर्स जो आप खास करके लाइफ साइंसेस में यूज़ करते हैं, ग्राफपैड या फिर प्रिज्म आप जिसको कहते हैं, जो आप यूज़ करते हैं, मिनिटैब इज देयर, एसपीएसएस भी यूज़ होते हुए मैंने देखा हुआ है. आर इज ऑलवेज देयर. आर तो यूनिवर्सल एप्लीकेशंस है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन्स. लाइफ साइंसेस में भी आर आप आसानी से यूज़ कर सकते हो. तो इसका अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है ज़रूरी है. रिसर्च करते वक्त ना 2 चीज़ें आती हैं. एक होता है आपको रिसर्च का नॉलेज होना और दूसरा है आपके पास रिसर्च की स्किल्स होना. डिफरेंस है ये दोनों शब्दों में. मैं बोल रहा हूँ रिसर्च का नॉलेज और रिसर्च का स्किल, दोनों में डिफरेंस क्या है. एक लाइन में बताने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर आपको हाइपोथेसिस की डेफिनेशन मालूम है और आप उसको, इफ सपोज आई आस्क यू हाउ विल यू डिफाइन हाइपोथेसिस, if you give me answer कि sir hypothesis is a statement, it's a assumption which needs to be tested empirically, and you might have come across this particular definition for n number of times. यानी अभी ये हो गया आपका नॉलेज कि आपको हाइपोथेसिस क्या है ये मालूम है. पर मैं अगर आपको बोलता हूँ कि मैं आपको एक टॉपिक दे रहा हूँ और आप इस टॉपिक पे हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करके दिखाइए, यानी अगर ये आपको आता है तो मैं कहूँगा आपके पास स्किल है. तो रिसर्च के सेंस में सिर्फ नॉलेज होके नहीं होता है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग या फिर आपको उसको उसकी स्किल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लगती है. और आज अगर तैयारी करनी है रिसर्च के सेंस में, और क्वालिटी तब अचीव होगी जब आपको ये पूरे 5 डायमेंशंस का अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा. देखिए कुछ स्टैटिस्टिक्स के सॉफ्टवेयर जैसे मैंने आपको बताया माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेल में अच्छे खासे फंक्शंस है. और परसों हमारा जो एक सेशन है
हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। उसमें मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ कैसे होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, वो मैं कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस भी करके दिखाऊँगा। मिनीटैब जैसे मैं बात कर रहा था, आर एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन पैकेज है, एसपीएसएस टैब्ल्यू एक पैकेज है जो डेटा विजुअलाइजेशन को डेडिकेटेड है। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर्स है जिसका अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी लगता है हर किसी रिसर्च स्कॉलर को। चौथा जो एस्पेक्ट है रिसर्च की क्वालिटी एनहांस करने के लिए, वो है साइंटिफिक राइटिंग का डिसिप्लिन। रिसर्च करते वक्त ये एक सेपरेट डिसिप्लिन है जो एड्रेस करता है कि आपका जो रिसर्च डॉक्यूमेंट है, उसको बनाने का साइंटिफिक तरीका क्या है। अगर आप रिसर्च पेपर बना रहे हो, तो ऑब्वियसली रिसर्च पेपर का फॉर्मेट होता है। रिसर्च पेपर 2 प्रकार के होते हैं, एम्पिरिकल और रिव्यू, जो हम लोग मेरा जो लास्ट सेशन रहेगा उसमें बात करेंगे। और एम्पिरिकल पेपर लिखते वक्त उसके कुछ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे IMRAD। ये अगर आपको नहीं मालूम तो ऑब्वियसली जो अच्छी क्वालिटी के जर्नल्स आप जैसे स्कोपस या WOS या फिर आप पबमेड खास करके लाइफ साइंसेस के लिए, यहाँ पे अगर प्लान कर रहे हो और आपको अगर ये बेसिक फॉर्मेट्स नहीं मालूम है, तो ऑब्वियसली आपके पब्लिकेशन का जो आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका पब्लिकेशन वैल्यू जो है वो कम हो जाता है। तो मुझे लगता है साइंटिफिक राइटिंग एक ऐसा डिसिप्लिन है कि जो हर रिसर्च स्कॉलर को मालूम होना ज़रूरी है। साइंटिफिक राइटिंग यानी क्या? ये रूल्स और स्टैंडर्ड्स बताता है कि एक पर्टिकुलर रिसर्च डॉक्यूमेंट कैसे होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होती है एक डॉक्यूमेंट से। बात करते हैं, ये देखिए, ये सब डॉक्यूमेंट्स जनरली हम लोग बनाते हैं, और हमारा जो साइंटिफिक राइटिंग का डिसिप्लिन है, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, उसकी योग्य पद्धत क्या है। आपको शायद एपीए या फिर हार्वर्ड इनके मैनुअल्स के बारे में आपने सुना होगा, तो यही मैं एक्चुअली साइंटिफिक राइटिंग की बात कर रहा हूँ। और आपको जस्ट शेयर कर रहा हूँ मैं कि साइंटिफिक राइटिंग पे किताबें भी अवेलेबल है। 600-700 पेजेस की किताबें हैं कि सिंपल सा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, कि साइंटिफिक राइटिंग में क्या आता है कि एक एक कॉमन डाउट हमारे मन में ये होता है कि हमारा जो रिसर्च थीसिस है उसमें प्रीफेस लिखनी चाहिए कि एक्नॉलेजमेंट लिखनी चाहिए, या दोनों लिखना चाहिए। और एक डाउट जो मुझे बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स पूछते हैं कि सर, एक्नॉलेजमेंट के नीचे जब हम लोग नाम लिखते हैं हमारा, तो क्या उसके ऊपर हम लोगों ने साइन करना चाहिए? तो ये कुछ ऐसे हमारे मन में सवाल है कि जिसके जवाब आपका साइंटिफिक राइटिंग का डिसिप्लिन देने की कोशिश करता है। तो ये रूल्स और स्टैंडर्ड्स हम लोगों को देता है कि एक पर्टिकुलर मैन्युस्क्रिप्ट या एक पर्टिकुलर रिसर्च डॉक्यूमेंट कैसे होना चाहिए आइडियली। ये देखिए, मैन्युस्क्रिप्ट के सेंस में, सॉरी, आपकी रेफरेंसिंग के सेंस में, आज की डेट में आप एमएस वर्ड में रेफरेंसेस जनरेट कर सकते हो, या फिर मेंडेले के बारे में आपने सुना होगा। और लाइफ साइंसेस में तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि रेफरेंसेस जनरेट करने के लिए और साइटेशंस जनरेट करने के लिए मेंडले का उपयोग हो रहा है। झोटेरो एक सॉफ्टवेयर है जहाँ से आप रेफरेंसिंग स्टाइल्स इजीली बना सकते हो एंड ऑल। लैटेक्स है, आपको भी मालूम होगा शायद। मैं 5वें मुद्दे पे आ रहा हूँ। सभी रिसर्च स्कॉलर्स को मुझे लगता है कि रिसर्च पब्लिकेशंस और पब्लिकेशन एथिक्स, इसके बारे में भी एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आप एक वर्ड नोट कर लेंगे, उसको ऑल्टोमेट्रिक्स कहते हैं। ये स्कोर होता है, ये आपका आप एज ए रिसर्च स्कॉलर कितने तगड़े हैं उसका एक स्कोर बनता है, जिसको ऑल्टमेट्रिक स्कोर कहा जाता है। तो आपने इम्पैक्ट फैक्टर सुना होगा, एच इंडेक्स, या फिर आपने जी इंडेक्स, ये कुछ सुना होगा आपने, I5 I10 भी आता है। तो इसका अंडरस्टैंडिंग भी मुझे लगता है आज की डेट में रिसर्च स्कॉलर को कंपल्सरीली मालूम होना चाहिए। आपको भी मालूम है कि एक पेपर लिखने के बाद कहाँ पब्लिश करना है, ये एक बड़ा पेचीदा मुद्दा है, इट्स अ क्रक्स यू कैन से। और उसके लिए ऑब्वियसली यूजीसी केयर लिस्ट हम लोग रेफर करते हैं, या फिर स्कोपस इंडेक्स, या फिर WOS इंडेक्स जो जर्नल्स होते हैं, या फिर विले है, या फिर एल्सवेयर है। यहाँ पे हम लोग प्लान करते हैं, और उसका अगर हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग है, आप एक नाम भी नोट कर लेंगे, शायद मालूम भी होगा, पर शायद एक कोई हो सकता है कि जिसको ये नहीं मालूम होगा। नोट भी कर लेंगे आप गूगल पे थोड़ा सा, ABDC। अगर ABDC जर्नल लिस्ट ऐसा अगर अगर आप गूगल में टाइप करते हैं, तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। आपको शायद मालूम होगा कि यूजीसी केयर लिस्ट, हम लोग जो इंडिया में बात करते हैं कि इंडिया में सबसे बेहतरीन जर्नल्स कौन से, तो जो यूजीसी केयर लिस्ट में है। वही अगर इंटरनेशनली बात करते हैं, वर्ल्ड की बात करते हैं, तो उसका अपना एक रैंकिंग का क्राइटेरिया है, जिसमें हम लोग A, B और C ऐसे कैटेगरीज की बात करते हैं। और ए में पेपर पब्लिश होना, इट इज रियली क्रेडिट वर्दी, यू कैन से। A इज अ रिमोट ड्रीम, यू कैन से, बट स्टिल वी कैन स्ट्राइव फॉर। और ये अंडरस्टैंडिंग होना मुझे लगता है बहुत जरूरी है सभी रिसर्च स्कॉलर्स को। हम लोग अभी कोर प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं, और हम लोग पहले सेक्शन में हैं।
यहाँ स्टैटिस्टिक्स यानी क्या, स्टैटिस्टिक्स की दो डेफिनेशंस मैं शेयर कर रहा हूँ हम लोग। प्रीति मैडम माझा आवाज येतोय? सर वॉइस क्रैक हो रहे, बीच बीच में रुक रहा है। अच्छा, एक कॉल आ गया था उसकी वजह से शायद थोड़ा सा। Okay. अभी मैंने बंद कर दिया है वो। कैन यू हियर मी नाउ? Yes, sir. ओके ओके, आई विल प्रोसीड। हम लोग स्टैटिस्टिक्स यानी क्या उसकी दो डेफिनेशंस देख रहे हैं। पहला जो डेफिनेशन है वो आपकी स्क्रीन पे है। ये डेफिनेशन है लेमैन व्यू पॉइंट से। एक लेमैन को अगर हम लोग पूछेंगे कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, तो we will always try to explain it in the way that कि statistics is any information which is expressed using numbers। जब भी हम लोग कोई नंबर्स यूज करते हैं कोई इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, तो उसको बेसिकली हम लोग स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और ये लेमैन की डेफिनेशन है। आपने मोदी सर को भी उनकी स्पीचेस में देखा होगा कि वो कहते हैं कि इंडिया इज अ यंग कंट्री, दिस इज इंफॉर्मेशन, एंड इफ आई एक्सप्रेस दिस इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग नंबर्स लाइक दिस कि 60% population in India below age of 30 years. So information is same, but this time around I'm expressing this information by using numbers. So this is a layman's viewpoint, you can say, of defining statistics. Now we are getting into the core definition जो हम लोगों के काम की है। statistician या फिर research scholars को जो एक understanding होना चाहिए what basically statistics is. So according to my viewpoint, statistics is a discipline which provides us with the methods of dealing with some kind of data, you can say. So basically statistics is nothing but it is a subject discipline which provides us with some tools, techniques and methods for processing our data or analyzing our data, you can say. Statistics के चार aspects आते हैं। Statistics provides us with the methods of data collection. Statistics also provides us the methods and techniques of data presentation, जिसको हम लोग data visualization या फिर graphical presentation एक आम आदमी की भाषा में जिसको कहते हैं। सो ग्राफिकली डेटा को कैसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है, उसकी टूल्स और मेथड्स जो है वो स्टैटिस्टिक्स हम लोगों को प्रोवाइड करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट वन, स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड्स अस विद द टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर analyzing our data, you can say. And the last one, statistics also provides us the tools and techniques for interpreting our results. So this is my definition of statistics, and I typically define statistics this way. So statistics addresses 4 issues, or statistics provides us tools and techniques with regard to 4 issues: data collection, data presentation, analysis, and interpretation, you can say. Now we are getting into what is biostatistics. So obviously, biostatistics is an applied discipline of statistics, you can say. When we apply the principles or the techniques of statistics in biology, that becomes biostatistics. So biostatistics is a specialized discipline of statistics, you can say. Like business management में अगर statistics की application की बात करते हैं तो हम लोग उसको business statistics या business analytics कह देते हैं. In the similar sense, when we apply statistical methods in biology, that becomes biostatistics. This is so simple. Precisely, biostatistics is the application of statistical methods to the biological problems, you can say, which includes human biology, animal and plant studies, you can say, medicine studies or clinical trials and all, and then public health. So biostatistics typically addresses these 4 issues, you can say. अभी बात करते हैं हम लोग statistical analysis यानी क्या। देखिए, वन लाइन सिंपल डेफिनेशन आपके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की ये है कि आप जब लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो आप कुछ जॉटिंग्स लेते हो, आप कुछ नंबर्स रिकॉर्ड करते हो, उसके मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाते हो, एंड देन यू पुट दैट पर्टिकुलर डेटा अंडर प्रोसेसिंग। ये जिसको हम लोग एनालिसिस कहते हैं। प्रोसेसिंग इज सिनोनिमस विद एनालिसिस। So statistical analysis is basically the process of transforming raw data into meaningful information. क्योंकि हम लोगों ने लैब में जो एक्सपेरिमेंट करते हुए डेटा कलेक्ट किया है, दैट इज इनहेरेंटली रॉ इन नेचर। वो तो एक पेपर पे पड़ा हुआ है ना, दैट इज अनप्रोसेस, दैट इज अवेलेबल इन अनप्रोसेस फॉर्म और रॉ फॉर्म जिसको हम लोग कहते हैं। और डिसीजन मेकर्स को ना
डेटा काम में नहीं आता है, उनको काम में आती है इंफॉर्मेशन. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन? डेटा इज इनहेरेंटली अवेलेबल इन रॉ फॉर्म, अनप्रोसेस्ड फॉर्म, and information is processed data. Information is available in more meaningful sense, you can say. And what statistical analysis do for us? Statistical analysis is a process of transforming or converting that raw data into meaningful information. Though this is my definition. जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम लोग टिपिकली लाइफ साइंसेस के रिसर्च स्कॉलर्स हैं, तो आप में से बहुत सारे तो हम लोग एक्सपेरिमेंट्स ही परफॉर्म करते हैं लैब बेस्ड, या फिर कुछ फील्ड बेस्ड हो सकते हैं, और वहां से जो डेटा जनरेट होता है उसको जब हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसका जब प्रोसेसिंग करते हैं, सो एक्चुअली वी आर ट्रांसफॉर्मिंग अवर रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल फाइंडिंग्स, एंड फाइंडिंग्स आर प्रीटी रिलेवेंट, एंड फाइंडिंग्स आर what we can say helpful for the decision makers or respective stakeholders of your research study, you can say. हम लोग एनालिसिस की बात कर रहे हैं. जब भी हम लोग कोई रिसर्च स्टडी करते हैं, आपका इफ सपोज हम लोग रिसर्च पेपर या फिर रिसर्च थेसिस की बात करते हैं, पीएचडी थेसिस की अगर बात करते हैं, तो हम लोगों को दोनों जगह एनालिसिस करना है. और एनालिसिस करने के लिए हमारे पास ये जो डॉक्यूमेंट है, रिसर्च पेपर हो या फिर आपका रिसर्च थेसिस हो, ये पूरे इफ सपोज रिसर्च थेसिस की बात कर रहे हैं 400, तो उसमें कोई एक या दो पेज ही ऐसे हैं कि जो हम लोगों को एनालिसिस के लिए स्कोप देगी, और वो पेज होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स के स्टेटमेंट्स और हाइपो. इन शॉर्ट, आपका एनालिसिस जो है इट रिवॉल्व्स अराउंड द सेट ऑफ योर ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स एंड योर हाइपोथेसिस स्टेटमेंट्स. यानी क्या एनालिसिस अगर करना है तो हम लोगों को ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाई करना होता है और हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करना होता है. सो दिस इज व्हाट वी डू व्हाइल परफॉर्मिंग एनालिसिस, यू कैन से. सो एनालिसिस दो प्रकार का होता है, जैसे मैंने आपको बताया. एनालिसिस करते वक्त हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाई करते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो स्टैटिस्टिकल टूल्स की एक बास्केट बनी हुई है, उसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. गेटिंग मी? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. एनालिसिस करने के लिए हमारे पास दो सेट्स है. एक सेट है सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स स्टेटमेंट्स, और ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग सेटिस्फाई करते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं, वो पूरी बास्केट को हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं. दूसरा सेट जो हमारे पास है वो है हमारा हाइपोथेसिस स्टेटमेंट का सेट. और हाइपोथेसिस का एनालिसिस करना यानी हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करना, ऐसे हम लोग कहते हैं. और हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए स्टैटिस्टिक्स में एक जो फुल फ्लेजेड सेपरेट बास्केट है, उस बास्केट को हम लोग कहते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. गेटिंग मी? आपको जस्ट रिमाइंड करा रहा हूँ कि आज हमारा जो प्रेजेंटेशन चल रहा है, इसके 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस है. पहला इंट्रोडक्शन जो अभी हम लोग कर रहे हैं, दूसरा सेक्शन है मेरा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और तीसरा है इन्फरेंशियल. तो अभी आपकी शायद आइडिया क्लियर हो गई होगी कि मैं ओवरव्यू ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या आता है और इन्फरेंशियल में क्या आता है, इसके बाद के दोनों सेक्शंस में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ. बात करते हैं सब डिविजन्स ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स. दो डिविजन्स है. बेसिकली ये दो डिविजन्स बने हैं कि स्टैटिस्टिक्स के पर्पसेस क्या है. स्टैटिस्टिक्स इज मेन फॉर टू पर्पसेस, यू कैन से. The first set is considered as means the first basic purpose of statistics is to describe the characteristics of the variables under consideration. और कैरेक्टर आपके वेरिएबल की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स की बास्केट है या एक सेपरेट सब डिविजन है, उसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. और दूसरा एक होता है, दूसरा पर्पस होता है स्टैटिस्टिक्स का, जिसको हम लोग जनरलाइजेशन कहते हैं. मैं थोड़ी देर बाद इसको और एलैबोरेट कर रहा हूँ. मैं जनरलाइजेशन यानी क्या, तो सैंपल का स्टडी करके पॉपुलेशन पे रिजल्ट्स आपके एक्स्ट्रापोलेट करने की प्रोसेस को हम लोग जनरलाइजेशन कहते हैं. और जनरलाइजेशन के लिए स्टैटिस्टिक्स में एक जो सेपरेट डिस्टिंक्ट बास्केट है, उसको हम लोग कहते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. तो ऑब्वियसली यहां से आगे हमारे पास इन शॉर्ट स्टैटिस्टिक्स जो है उसके दो डिविजन्स है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. अब स्टैटिस्टिक्स यानी क्या और उसमें क्या क्या टूल्स और टेक्निक्स अवेलेबल है हमारे डेटा को प्रोसेस करने के लिए, वो जानने की कोशिश होगी. और तीसरे सेक्शन में हम लोग बात करेंगे इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में, और वहां पे जानने की कोशिश करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में कौन सी टूल्स और टेक्निक्स अवेलेबल है विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन प्रोसेस एंड एनालाइज आवर डेटा. सो वी आर ऑन टू द सेकंड सेक्शन नाउ, और यहाँ पे बात होगी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की.
दिस इज वन लाइन डेफिनेशन। देखिए, जब भी एनालिसिस हम लोग करते हैं, एनालिसिस की शुरुआत कब होगी? वंस यू डन विथ योर एक्सपेरिमेंटेशन पार्ट, आपका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो चुका है और आपके पास जो रिक्वायर्ड डेटा है उसकी आपने जॉटिंग्स या ऑब्जर्वेशंस ले लिए हैं और आपके पास डेटा अवेलेबल। उसके बाद सबसे पहले जो आप करेंगे एनालिसिस के फॉर्म में, वो होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। यानी एनालिसिस टिपिकली स्टार्ट्स विद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या आता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हम लोगों को डेटा ऑर्गेनाइज करने की टेक्निक्स है। ऑर्गेनाइज यानी क्या? हमारे पास जो डेटा है वो रॉ फॉर्म में अवेलेबल है, हमने शायद ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, पेपर पे हम लोगों ने कुछ जॉटिंग्स ली हुई है और वो डेटा जो है वो स्कैटर्ड इन द सेंस अनऑर्गेनाइज्ड आप जिसको कह सकते हो। सो हम लोग उसको ऑर्गेनाइज या स्ट्रक्चर करने की कोशिश करते हैं इन मीनिंगफुल सेंस। इफ सपोज आपने एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटेशन के 1000 ऑब्जर्वेशंस लिए और वो एक के नीचे एक आप जस्ट जॉटिंग लेते जा रहे हो, तो ये जो डेटा है इट इज अवेलेबल इन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। और हो सकता है कि ये डेटा इज रनिंग इनटू सेवरल पेजेस। इफ सपोज 10-15 पेजेस में ये बिखरा पड़ा है। सो अभी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हम लोगों को इसको कंडेंस करने के, कंडेंस यानी छोटे स्वरूप में, ये जो 12-15 पेजेस में डेटा पड़ा हुआ है ये एक पेज पे कैसे दिखेगा, ये टेक्निक हम लोगों को डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स देती है। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डू फॉर अस, descriptive statistics helps us in organizing and structuring our data in some meaningful sense, you can say. So descriptive statistics जो है ये डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए और डेटा को समराइज करने के लिए यूज होता है। इसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर रहा हूँ मेरी नेक्स्ट स्लाइड्स पे। क्योंकि statistics used for summarization and narration of clinical characteristics is typically considered as your descriptive biostatistics. Descriptive statistics में तीन मेन चीजें आती है या फिर descriptive statistics addresses three major issues. The first part, descriptive statistics provides us with the tools and techniques of data condensation. डेटा कंडेंसेशन का मतलब है छोटे स्वरूप में लेके आना। 15 पेजेस का डेटा एक हाफ पेज में you can simply take a glance over it and you can get a pattern. You can say this is what is called as data condensation. और data condensation is nothing but preparing statistical tables. आप जो डेटा अनस्कैटर्ड सॉरी अनऑर्गेनाइज फॉर्म में जो पड़ा हुआ है उसका जब टेबुलर प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली यू आर कंडेंसिंग योर डेटा एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। इससे भी पहले जो आता है डेटा प्रिपरेशन जिसको हम लोग कहते हैं, डेटा क्लीनिंग, डेटा एडिटिंग जिसको कहते हैं, और कोडिंग का और क्लासिफिकेशन का पार्ट आता है। उसके तुरंत बाद हम लोग डेटा टैबुलेशन करते हैं और ये है एंट्री लेवल का एनालिसिस। और एक्चुअली ये हम लोगों को एनालिसिस का एक बेसिक प्रिपरेशन करा के देने की कोशिश कर रहा है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। सो ये सबसे पहला पार्ट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का। दूसरा है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड्स अस विद द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। व्हाट डज दिस मीन? डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब है डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ योर डेटा। आपने एक बार टेबल बना लिया, स्टैटिस्टिकल टेबल बना लिया, तो जनरली वी डोंट रिपोर्ट टेबल्स, वी जनरली ट्रांसफॉर्म अवर टेबल्स इनटू व्हाट वी कैन से charts and diagrams, you can say. So descriptive statistics provides us with the tools and techniques of preparing different types of graphs and charts, you can say. And the third part that descriptive statistics do for us is data summarization techniques, you can say. ये क्या है? ये दोनों चीजें, डेटा विजुअलाइजेशन और डेटा समराइजेशन, मैं यहां से आगे अभी एलैबोरेट फॉर्म में बात कर रहा हूँ। देखिए, बात हो रही है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जैसे मैंने आपको बार बार बोला है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स अस इन डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेरिएबल्स अंडर कंसीडरेशन। व्हाट डज दिस मीन? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ये 5 चीजों का एड्रेस करता है। इफ यू आर सर्चिंग फॉर द आंसर्स ऑफ दिस 4W and 1H, बेसिकली यू आर रिसोर्टिंग टू डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इन शॉर्ट, अगर आप who, what, when, where and how इसकी बात कर, how and how often you can say frequencies, ये सवालों के जवाब आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एंड टिपिकली इन लाइफ साइंसेस वी डू दिस। पेशेंट का सर्वे जब होता है तो ये 5 इश्यूज हम लोग एड्रेस करते हैं और इसको हम लोग हमारी लाइफ साइंसेस में एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च कहते हैं। और एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च में हम लोग ये पॉइंटर्स आप देख रहे हैं, 6 पॉइंटर्स। हु इज गेटिंग डिसीज इन द पॉपुलेशन, how they occur, when they occur, how often they occur, where they occur means the geographic areas, you can say, and what factors are associated with the diseases. And typically in life sciences, we try to seek answers to these particular questions. And whenever you are doing such kind of processing of your data,
typically you are resorting to descriptive statistical analysis. So it is more about describing the characteristic features of the population or the event, you can say, or the variables under consideration in descriptive statistics. So डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स तीन मेन चीजों की बात करता है. मीन्स हम लोग जब एवरेज कंप्यूटेशन की बात करते हैं, जब हम लोग परसेंटेज कंप्यूटेशन की बात करते हैं, या फिर जब हम लोग फ्रीक्वेंसी कंप्यूटेशन की बात करते हैं, तो एक्चुअली हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म करते हैं. में यानी क्या, जब भी बात होगी मीन, मोड, मीडियन जो हम लोग बोलते हैं, एवरेजेस, परसेंटेज में अगर आपके फाइंडिंग्स पुटअप करने की कोशिश कर रहे हो कि कितने परसेंट पेशेंट्स अफेक्टेड है. जैसे नागपुर की अभी पॉपुलेशन है लगभग 35 लाख, सिटी की अगर बात करते हैं 35 लाख पॉपुलेशन है, और इसमें इफ सपोज 16 से 17 हजार कोविड पेशेंट्स है, और अगर आप इसको परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हो कि परसेंटेज ऑफ कोविड पेशेंट्स इन नागपुर of total population, obviously. So basically we are referring to descriptive statistics because we are describing the features of the target population under consideration. फ्रीक्वेंसीज की जब आप बात करते हो कि एक पर्टिकुलर डिसीज साल में कितनी बार उसका, जिसको हम लोग एपिडेमिक जिसको कहते हैं, कि वो कितना फ्रिक्वेंटली ऑकर होता है, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंसीज. तो जब भी आप एवरेजेस, परसेंटेजेस या फ्रीक्वेंसीज की बात करते हैं, तो बेसिकली वी आर मेकिंग यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ये दो चीजों पे फोकस करता है, व्हाट इज हैपनिंग और व्हाट हैज हैपेंड. और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स तीसरा जो मुद्दा है, व्हाई इट इज हैपनिंग, ये एड्रेस नहीं करता है. यानी क्या, अगर आप ये बोल रहे हो कि क्या चल रहा है, उसका अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, और ये कैसे हुआ, सॉरी ये कब हुआ, ये अगर आप बात कर रहे हो, तो बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. अगर आप बात करते हो कि व्हाई इट इज हैपनिंग, कि उसके पीछे कारण क्या है, एक पर्टिकुलर डिसीज होने का कारण क्या है, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डायग्नोस्टिक रिसर्च, यू कैन से. सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज मोर इन रिपोर्टिंग फॉर्म, यू कैन से. आपको जो दिखा, आपने लैब में एक्सपेरिमेंट किया, और आपके जो भी ऑब्जर्वेशंस आए हैं, और आप उसको ऑब्जर्वेशंस को फाइंडिंग के फॉर्म में रिपोर्ट कर रहे हैं सिंपली, कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया और मेरे फाइंडिंग्स मुझे ये ऐसा दिखा. एंड इफ यू आर सिंपली रिपोर्टिंग दिस, then this is typically considered as descriptive statistics. तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन किस चीज का, डिस्क्रिप्शन होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल्स का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन अंडर कंसिडरेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्टिकुलर फिनोमेना, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्टिकुलर डिसीज, यू कैन से. और दूसरी बात है एग्जामिनिंग रिलेशनशिप्स. सो ये दो मेजर इश्यूज आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एड्रेस करता है. जैसे मैं बात कर रहा था, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में दो फिर से सब बास्केट्स है. पहला पार्ट है डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, और दूसरा पार्ट है आपका समरी स्टैटिस्टिक्स. एक एक करके ये दोनों बास्केट्स का दायरा जो है, जो फ्रेमवर्क है, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ. पहले बात करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन की. और डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब एक आम आदमी की भाषा में, जब हम लोग ग्राफिकल या फिर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो एक्चुअली हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक की बात करते हैं. डेटा विजुअलाइजेशन इज क्वाइट अ ट्रेंडी टर्म, जो पिछले कुछ सालों में यूज हो रही है, पर हमने बचपन से जो किया है, मुझे तो याद है अभी भी कि 5th स्टैंडर्ड में हमने पहली बार ग्राफ पेपर हाथ में लिया था, और कुछ ग्राफ्स हमने बनाने की कोशिश किए थे. तो हम लोगों को जो ग्राफ्स, डायग्राम्स या फिर चार्ट्स, ये वर्ड जो फैमिलियर है, उसी को आज की डेट में डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक करके कहा जाता है. And data visualization has got its own importance in reporting the research findings. And why it is so? Just because of the reason that you can read on the screen, a picture is worth 1,000 words. कि आप रनिंग पैराग्राफ में अगर आपके डेटा को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो it will not make any sense. Rather, you just go for pictorial presentation, and data visualization helps us in presenting our data in pictorial form, you can say. So it is, data visualization is nothing but the representation of information or representation of your data sets with the help of charts, diagrams, pictures, etc. So data visualization is not an analytical tool. Data visualization is basically a reporting tool, you can say. It is pictorial presentation or pictorial representation of your data in general, you can say. देखिए, इसमें ना 5 प्रकार है, यानी डेटा विजुअलाइजेशन में क्या क्या आता है. तो सबसे पहले आते हैं आपके स्टैटिस्टिकल टेबल, जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ. दूसरी आती है डायग्राम्स, तीसरे आते हैं चार्ट्स या फिर जिसको हम लोग ग्राफ्स कहते हैं. उसके बाद आपके मैप्स, या फिर पांचवा है इन्फोग्राफिक्स. बात टेबल्स तो आपको मालूम है,
डायग्राम्स और चार्ट जैसे मैंने वहां पे लिखा है, चार्ट्स को आप ग्राफ भी बोल सकते हो। फर्क जानने की कोशिश करते हैं कि डायग्राम और ग्राफ में फर्क क्या होता है। देखिए, एक सिंपल सा डिफरेंस जो मुझे समझ में आया है कि अभी थोड़ी देर पहले मैं एग्जांपल दे रहा था कि हम लोगों ने शायद 5th स्टैंडर्ड में पहली बार ग्राफ बनाया है लाइफ में, और उस वक्त हम लोगों ने कुछ आपके चार्ट्स बनाने के लिए हमने ग्राफ पेपर यूज किया था और कुछ जगह नहीं यूज किया था। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो है ना, इट लाइज ओवर देयर कि आप ग्राफ पेपर यूज कर रहे हो या प्लेन पेपर या रूल पेपर आप यूज कर रहे हो, वो डिटरमाइन करता है कि आप ग्राफ बना रहे हैं कि डायग्राम बना रहे हैं। तो वन लाइन डेफिनेशन, जो डायग्राम या फिर जो चार्ट बनाने के लिए ग्राफ पेपर का यूज करना होता है उसको ग्राफ्स कहते हैं, और जो प्लेन पेपर पे बन जाता है उसको हम लोग डायग्राम कहेंगे। अभी पाई डायग्राम हम लोग कहते हैं, पाई चार्ट जिसको हम लोग कहते हैं, तो पाई चार्ट के लिए हम लोग ग्राफ पेपर यूज नहीं करते हैं, कभी हम लोग प्लेन पेपर पे बना लेते हैं। तो पाई चार्ट जो है ना, इट इज कंसिडर्ड एज डेटा प्रेजेंटेशन टेक्निक, यानी में। और आपके अगर चार्ट या फिर मैं ग्राफ की अगर बात करूंगा तो हम लोगों को लाइन ग्राफ आपने सुना होगा, या फिर आपने बार ग्राफ सुना होगा, क्योंकि बार ग्राफ हम लोगों को ग्राफ पेपर पे बनाना होता है। हिस्टोग्राम हम लोग ग्राफ पेपर पे बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स या फिर ऑज्यूज जो है वो हम लोग ग्राफ पेपर पे बनाते हैं। इवन स्कैटर प्लॉट अगर आपको बनाना है तो हम लोग ग्राफ पेपर पे बनाते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अभी बात करते हैं कि डायग्राम और ग्राफ में फिर रिपोर्ट करते वक्त क्या करना चाहिए। तो जहां तक साइंटिफिक राइटिंग के कन्वेंशंस का सवाल है, साइंटिफिक राइटिंग ये कहती है कि कोई भी सीरियस लेवल के रिसर्च प्रोजेक्ट्स में आप पाई चार्ट्स का रिपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि पाई चार्ट जो है इट इज डेटा प्रेजेंटेशन टेक्निक, इट इज नॉट डेटा एनालिसिस। आपके जो ग्राफ्स है, लाइन ग्राफ या आपके कंपैरिजन लाइन चार्ट्स भी आते हैं, तो ये जो है ना, ये एनालिटिकल टूल्स है। व्हाई इट इज सो? बिकॉज कोई भी लाइन ग्राफ जो है ना, वो लैटेंट पैटर्न्स को एग्जिबिट करता है, पर आपका पाई चार्ट जिसको हम लोग कहते हैं या पाई डायग्राम जिसको कहते हैं, वो सिर्फ एक सिंपल प्रेजेंटेशन कर देता है। व्हाट वी कैन से ब्रेकअप ऑफ अ होल, यू कैन से कि 100% में से कितना परसेंट किस पर्टिकुलर कैटेगरी को जा रहा है, उसका एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन आपका पाई चार्ट होता है, और उसमें से एनालिसिस नहीं होता है। इट इज सिंपल डेटा प्रेजेंटेशन टेक्निक। एडवर्ड टफ्ट नाम से एक बंदा है जिसने डेटा विजुअलाइजेशन पे अच्छी किताबें भी लिखी है, और लगभग 30 साल उसने सिर्फ डेटा विजुअलाइजेशन पे ही काम किया है। और वन लाइन में अगर डिफाइन करना है कि उन्होंने क्या काम करके रखा है डेटा विजुअलाइजेशन पे, तो मैं ये कहूंगा कि ये एक ऐसा बंदा है जिसने 30 साल में सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि ग्राफ योग्य तरीके से बनाते कैसे है। ये सिंपल एक लाइन पे ये बंदे ने 30 साल काम किया हुआ है। सो पार्ट अपार्ट, ये बंदे का जो ओपिनियन है, उसने ये कहा है कि पाई चार्ट का रिपोर्टिंग जनरली सीरियस डॉक्यूमेंट में नहीं करना चाहिए। आपके ठीक है स्टूडेंट लेवल के कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है, दैट इज ओके, पर आपका जो रिसर्च पेपर या रिसर्च थेसिस है, जहां तक हो सके पाई चार्ट का अवॉइड यूज जो है वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इट इज सिंपल डेटा प्रेजेंटेशन टेक्निक, इट इज नॉट एनालिटिकल टेक्निक। इन्फोग्राफिक्स और मैप्स, इसमें मैं अभी फिलहाल नहीं जाऊंगा, बिकॉज मुझे लगता है कि और ज्यादा मीनिंगफुल आगे आने वाली चीज है, उस पर मैं जरा ज्यादा बात करूं। ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के, तो मैं कुछ सॉफ्टवेयर जो आप आसानी से, आपको कुछ आते भी होंगे इसमें से, पर कुछ आप तैयार कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक अच्छा डेटा विजुअलाइजेशन का हम लोगों को ऑप्शंस देता है। अगर आप 2016 का वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे कंटेम्परेरी ग्राफ्स है, जैसे बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बहुत अच्छे बन जाते हैं 2016 के वर्जन में, या फिर बाकी भी लगभग एक 16 से 17 इनहेरेंट यानी कस्टमाइज जो है इनबिल्ट चार्ट के ऑप्शंस है, और वो इनबिल्ट चार्ट ऑप्शंस यूज करके लगभग 50 तरीके के ग्राफ्स आप सिर्फ एमएस एक्सेल यूज करके बना सकते हो। सो एमएस एक्सेल आपको भी मालूम है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ये एक यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। इसकी होम पेज पे जाने के बाद डर नहीं लगता है, एक अपनापन लगता है, क्योंकि हम लोगों ने इसको बहुत बार देखा है। ये होम पेज, इसका स्क्रीन, हमने कुछ ना कुछ बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म किए हुए एक्सेल के, तो ये यूजर फ्रेंडली है। और डेटा विजुअलाइजेशन में एक अच्छा पैकेज माना जाता है, क्योंकि इसमें जो एडिटिंग के फंक्शंस है वो बहुत बेहतरीन है। मैंने बाकी भी सॉफ्टवेयर यूज किए हुए, उनके अपने लिमिटेशंस है, पर मुझे पर्सनली एमएस एक्सेल के फीचर्स बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर वाइजली यूज करें, रैशनली अगर यूज करें, जुडिशियसली अगर यूज करें, तो एमएस एक्सेल एक बेहतरीन डेटा विजुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर मैं मानता हूँ, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सभी को। दूसरा आपका एसपीएस है, जिसमें चार्ट बिल्डर के ऑप्शंस है। ग्राफ नाम से एक मेन्यू में कमांड है, और वहां पे आप चार्ट्स बना सकते हो। हाँ, कंटेम्पररी बहुत सारे ऑप्शंस है, पर एसपीएसएस के लिमिटेशंस है, क्योंकि इसमें एडिटिंग के ऑप्शंस नहीं है। ग्राफ बन तो जाता है,
और एडिटिंग इसमें नहीं है, कलर वगैरह जो है इसमें आप ठीक से कर नहीं सकते हो, आप लेबलिंग नहीं कर सकते हो, इंडिविजुअल डेटा के लेबल्स आप सिर्फ एमएस एक्सेल में बहुत आसानी से दे सकते हो। पर एसपीएसएस के अपने कुछ लिमिटेशंस है, पर ये कुछ सॉफ्टवेयर्स है, आर में अच्छे खासे ग्राफ्स बन जाते हैं। और आपने जितने भी रिसर्च पेपर स्कोपस या फिर और कहीं अच्छी जगह देखे होंगे विले वगैरह, तो मोस्टली ये लोग आर का यूज करते हैं। और आर तो एक बहुत बड़ा, क्या बोलूंगा इसको, आर्ट स्टूडियो ही कहते हैं। इतने सारे उसमें लाइब्रेरीज है, मैंने तो सुना है शायद लाख 1 लाख के ऊपर लाइब्रेरीज है उसमें, इतना बड़ा ये सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो ओनली प्रॉब्लम विद आर इज इसमें कोडिंग बेस्ड है, प्रोग्रामिंग बेस्ड है, एंड दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। एंड दैट इज पॉसिबली द बिगेस्ट प्रॉब्लम, क्योंकि एक आम आदमी को कोडिंग इतना याद रखना फिजिबल नहीं होता है। पर ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेशनल रिसर्च कम्युनिटी अच्छा खासा यूज कर रही है। हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर्स की बात कर रहे हैं, उसमें टैब्लू के सिवा चर्चा कंप्लीट नहीं हो सकती है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डेडिकेटेड है डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक को। और ये ओपन सोर्स नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता। इसका ट्रायल वर्जन इंटरनेट पे मिल जाएगा एक 24 दिन के लिए। अच्छे टूल्स है इसमें, कंटेम्पररी बहुत सारे ऑप्शंस है, आप यू कैन प्ले विद एक्चुअली। और बहुत ही फैंसी इसमें ग्राफ्स बन जाते हैं। और मैंने इसका हैंड्स ऑन किया हुआ भी है। तो ओनली प्रॉब्लम विद टैब्लू, ओपन सोर्स नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। और दूसरा, इसके जो आउटपुट आते हैं आप उसको कॉपी पेस्ट कर नहीं सकते हो अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में। दिस इज अनदर लिमिटेशन ऑफ टैब्लू। पर है अच्छा खासा कॉम्प्रहेंसिव सा सॉफ्टवेयर है। और इंसिडेंटली नागपुर में इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। मैंने भी एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम इसका किया था, एंड आई हैड हैंड्स ऑन experience of Tableau, you can say. One of the better packages which is totally dedicated to your data visualization techniques, you can say. और आप लाइफ साइंसेस के हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा प्रिज्म या फिर ग्राफ पैड आप जिसको कहते हो। एक अच्छा सॉफ्टवेयर है आपकी डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक के लिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट है प्रिज्म तो। एक प्लॉटली है जो अच्छा खासा इंटरनेशनल रिसर्च फ्रेटर्निटी में पॉपुलर है, जो डेटा विजुअलाइजेशन की बेहतरीन टेक्निक्स आपको देता है। गूगल चार्ट्स आपको मालूम होगा, ये भी एक अच्छा खासा, आपको यहाँ पे करना कुछ नहीं होता है। गूगल फॉर्म में आप डेटा ले लीजिए तो चार्ट्स ये गूगल अपने आप आपको बना के दे देता है। और इसमें भी ऑप्शंस है, अच्छे खासे ऑप्शंस है। और इम्पोर्टेंटली ये कैसे एक्सेल के साथ कॉम्पैटिबल है। तो एक अच्छा पैकेज मैं रेकमेंड करूंगा इसको, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है और अच्छे खासे ऑप्शंस आ जाते हैं इसमें। याद दिला देता हूँ आपको, हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं। हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में 2 बास्केट्स आती है। पहला डेटा विजुअलाइजेशन, वी आर जस्ट डन विथ दैट पर्टिकुलर पार्ट। और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में दूसरा जो बास्केट आता है जिसको हम लोग कहते हैं समरी स्टैटिस्टिक्स, इसके ऊपर बात करते हैं। और इसके बाद हम लोग जाएंगे इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इन 6 चीजों को एड्रेस करता है। यानी में ये 6 बास्केट्स है, जिसमें ये ना बेसिकली स्टैटिस्टिकल टूल्स है। ये नंबर्स में या फिर चार्ट्स में आपको कुछ प्रोसेसिंग करके देते हैं। एक एक करके मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और मैं दायरा बता रहा हूँ। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जो समरी स्टैटिस्टिक्स आता है, और आपने ये वर्ड सुना भी होगा इससे पहले। आपने जो सॉफ्टवेयर या फिर किसी रिसर्च पेपर में आपने जब रिपोर्टिंग देखी होगी ना, तो उसमें एक टेबल 100% रहता ही है, जिसका टाइटल एक तो ये होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, या फिर उसका टाइटल होता है समरी स्टैटिस्टिक्स। और वहां पे आप देखेंगे कि ये मीन, मोड, मीडियन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, ये सब वहां पे प्रेजेंट किया जाता है। और ये रिपोर्टिंग कंपलसरी है आपके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, समरी स्टैटिस्टिक्स का। तो ये क्या है, और इसमें इसका दायरा क्या है, इसका फ्रेमवर्क क्या है, और इसमें क्या चीजें आती है, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंटली आपका जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का समरी स्टैटिस्टिक्स, ये जो बास्केट है, इसको मैं फिर से 6 छोटे छोटे बास्केट में डिवाइड कर रहा हूँ, सो दैट आपके एक माइंड में अच्छा खासा मेंटल मैप बन जाए कि बायोस्टैटिस्टिक्स का दायरा क्या है। यानी अभी हम लोग जा रहे हैं समरी स्टैटिस्टिक्स के 6 जो मेजर्स है, उसका एक सिंपल ओवरव्यू या फिर ग्लांस लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक करके डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। पहला जो पार्ट है समरी स्टैटिस्टिक्स का, जिसको हम लोग कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है आपके पास जो भी डेटा है, खास करके न्यूमेरिकल सेंस में जो डेटा आपके पास अवेलेबल है, नंबर के सेंस में, उसकी हम लोग एक सेंट्रल वैल्यू ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पहले बात करते हैं समरी स्टैटिस्टिक्स यानी क्या। समरी स्टैटिस्टिक्स का एक आम आदमी की भाषा में मतलब ये है कि आपके पास 1000 ऑब्जर्वेशन है। इफ सपोज आपने टेम्परेचर लिया है 1000 पेशेंट्स का, तो आपके पास 1000 डाटा पॉइंट्स आ गए। अभी आप उसको
समराइज करने के लिए कोई एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे कि जिस विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर यू कैन यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द बेसिक पैटर्न ऑफ द होल सेट ऑफ डेटा, और उसी को हम लोग समरी स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग बट वी आर रिड्यूसिंग डाउन, वी आर फिल्टरिंग डाउन टू वन पर्टिकुलर नंबर after processing huge data set, you can say thousands lakhs में अगर आपके पास नंबर्स है, डेटा ऑब्जर्वेशंस है, डेटा पॉइंट्स है, तो उसको हम लोग एक नंबर में, एक या दो नंबर में रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नंबर्स पूरे के पूरे डेटा सेट के बारे में बात कर लेगा, रिप्रेजेंट कर देगा उस पर्टिकुलर पूरे डेटा सेट को। और इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग स्टैटिस्टिक्स में समरी स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और समरी स्टैटिस्टिक्स में जो पहला बास्केट है जिसको हम लोग कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है वो पर्टिकुलर डेटा सेट की एक ऐसी वैल्यू जो सेंट्रली लोकेटेड है। और इसमें आते हैं आपके 6 टूल्स। मेजर्स का मतलब है ये प्रमाण जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसीज के ये 6 मेजर्स है। मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और वेटेड एवरेज। ये 6 प्रकार के मीन है। और एक सातवां भी आता है पार्ट अपार्ट। ये 6 मीन का एक लाइन में डेफिनेशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये इसका रिपोर्टिंग ना कंपलसरी है, और जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आपको उसके नीचे इंटरप्रिटेशन भी लिखना होता है। तो उसको वो अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगा और ये पर्टिकुलर 6 टूल्स क्या है और कौन से जगह यूज करते हैं, ये अगर अंडरस्टैंडिंग आ जाता है तो मुझे लगता है रिसर्च बड़ी आसान चीज है। बात करते हैं मीन, जिसको हम लोग एवरेज कहते हैं, और ये हम लोगों ने शायद 4th स्टैंडर्ड में, मुझे याद आ रहा है कि 4th स्टैंडर्ड में मैंने पहली बार अरिथमेटिक एवरेज कैलकुलेट किया था। उसी को हम लोग मीन कहते हैं। सो वी आर नॉट एलियन टू दिस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज, मीन, मीडियन, मोड, ये तो 100% हमको मालूम है। और इससे पहले हमने अंडर ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपको रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स का कोई ना कोई एक पेपर तो रहा होगा जिसमें आपने ये सब किया हुआ है। तो इसको ना हम लोगों ने स्टीरियोटिपिकली कर लिया है। इम्पोर्टेंटली क्या होता है, जब हम लोग ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जब करते हैं और एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से हम लोग ये चीजें पढ़ते हैं, और मुझे तो एक अंडरस्टैंडिंग ये भी आया है, एक कॉमन ऑब्जर्वेशन मेरा ये है कि स्टूडेंट्स को ना, जैसे आप लाइफ साइंसेस में एमएससी कर रहे हैं या एमटेक कर रहे हैं सपोज, तो ऑब्वियसली आपके जो कोर सब्जेक्ट है आपका फोकस वहां पे होता है, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट आ जाता है कि विच इज विथ डू नॉट कॉन्ज्यूर विथ योर रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, कि बाकी सब्जेक्ट्स रह के एक तरह और ये एक पेपर अलग से ही लग जाता है। तो ऑब्वियसली कोर के साथ ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट करता है, पर इसको भी तो पास करना होता है। तो ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेंटालिटी ये होती है कि यार इसमें जैसे तैसे 40 मार्क आ जाए यानी में, पर उस वक्त शायद ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है कि यही चीजों से पीजी के बाद जब पीएचडी करेंगे इन सब चीजों से पाला पड़ने वाला है। तो उस वक्त ना अंडरस्टैंडिंग पे फोकस नहीं होता है। और एक वियर्ड चीज वहां पे ये है कि एग्जाम में आपको डेटा सेट दिया होगा और उसके ठीक नीचे लिखा जाता है कि कंप्यूट अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ दिस गिवन डेटा सेट। अभी रिसर्च करते वक्त हमारे पास डेटा तो है, पर नीचे लिख के नहीं आया है कि वो डेटा का करना क्या है यानी में। और यहाँ पे रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स के ट्रेनिंग की जरूरत लगती है। एग्जाम में साफ साफ शब्दों में लिखा जाता है, और पीएचडी या कोई भी रिसर्च एक्टिविटी करते वक्त डेटा सिर्फ आ जाता है, और उसका करना क्या है ये एज ए रिसर्च स्कॉलर हम लोगों का डिस्क्रिप्शन है कि हम उसको ट्रीट कैसे करते हैं। तो एक लाइन में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरिथमेटिक मीन जो आपको समझता है, आपके पूरे होल सेट ऑफ डेटा जिसको हम लोग एक्स वैल्यूज कहते हैं उसका समेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो आपको मालूम है। मीडियन जो है ये पोजिशनल एवरेज, आपका जो डेटा सेट है उसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देते हैं, और असेंडिंग ऑर्डर में सपोज आपने सेट किया है तो पोजीशन वाइज जो सेंट्रल वैल्यू आएगी उसको हम लोग मीडियन कह देंगे। मोड इज द मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन, यू कैन से आपके पास अगर 1000 ऑब्जर्वेशन है उसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, तो वो सबसे हाईली ऑकर्ड वैल्यू इन योर होल डेटा सेट जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है डेटा सेट में, उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोग मोड कहते हैं। उसके बाद आता है ज्योमेट्रिक मीन। इसके बाद की जो चीजें हैं ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये दोनों चीजें किताबों में इतनी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दी हुई है, और शायद हम लोगों को इससे पहले भी अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अगर ये होगा तो शायद हमने ये ऑप्शन में छोड़ दिया होगा, क्योंकि किताबों में भी ऐसा ही इसी तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है, और पढ़ाने वालों ने भी। तो क्योंकि ये फार्मूले जो है ना इतने डरावने लगते हैं, और लगता है कि ये चीज हमारे लिए नहीं बनी हुई है, लगता है ये दूसरे किसी के लिए बनी है और वो यूज करते रहेंगे, पर ऐसा नहीं है। एक अगर सिंपल लाइन में अगर बात करनी है तो ज्योमेट्रिक मीन इंडिकेट्स योर रेट ऑफ चेंज, यानी में रेट ऑफ चेंज, ये अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो यू आर सपोज टू कंप्यूट ज्योमेट्रिक मीन। और हार्मोनिक मीन
जो बुक डेफिनेशन है पहले वो मैं बता देता हूँ, फिर मेरी डेफिनेशन बताता हूँ। हार्मोनिक मीन ऐसा कहते हैं कि जो फ्रैक्शन में वैल्यूज होती है हमारे पास, इफ सपोज 3/4, 9/17, 2/23 और ऐसे इसी तरीके से फ्रैक्शन में मेरे पास डेटा सीरीज है, तो उसका जब मीन निकालना है तो उस वक्त हम लोग हार्मोनिक मीन निकालते हैं, ऐसे बुक में डेफिनेशन दी है। और रिसर्च के सेंस में हम लोग अगर हार्मोनिक मीन निकाल रहे हो, रिपोर्ट कर रहे हो, उसका मतलब यह है कि आपके डेटा सेट में ना कुछ आउटलायर वैल्यू होती है। आउटलायर का मतलब समझा रहा हूं मैं। आपने इफ सपोज कुछ ऑब्जर्वेशंस लिया, आपने इफ सपोज 100 ऑब्जर्वेशंस लिए और उसको अगर आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दें, इफ सपोज हमने असेंडिंग ऑर्डर में वो पर्टिकुलर 100 ऑब्जर्वेशंस को अरेंज कर दिया, तो आपको एक एक जस्ट यू जस्ट टेक अ सिंपल ग्लांस ओवर द डेटा सेट एंड यू विल रियलाइज दैट कि कुछ जो ऑब्जर्वेशंस है दे आर नॉट गोइंग विद द टिपिकल पैटर्न। बाकी सब वैल्यूज एक दायरे में या आसपास घूम रही है और कुछ एब्रप्ट वैल्यूज आ जाती है डेटा सेट में कि विच डू नॉट रिप्रेजेंट द होल सेट ऑफ डेटा। ऐसी जो एब्रप्ट या फिर एक्सट्रीम वैल्यूज होती है, इसको हम लोग आउटलायर्स कहते हैं। और ये आउटलायर्स आपके स्टडी में कितने हैं, कौन से हैं और उसका क्या करना है, ये तीन चीजों को एड्रेस करने के लिए एक टेस्ट आती है जिसको आउटलायर्स टेस्टिंग कहते हैं। अगर आपने आउटलायर टेस्ट नहीं किए और आपने डेटा सेट का प्रोसेसिंग कर लिया है तो जो भी फाइंडिंग्स आएगी वो मिसलीडिंग होती है, क्योंकि आपके डेटा सेट में, जैसे मैं इफ सपोज एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि मेरे पास इफ सपोज ऑब्जर्वेशंस ऐसे हैं 5, 9, 27, 67 एंड दिस वे। तो अभी आप देखेंगे इसमें से कोई भी वैल्यू मैच नहीं कर रही है गेटिंग में। इसके लिए आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इसमें से आपके आउटलायर्स कौन से हैं? तो इसमें ना स्टैटिस्टिकल प्रोसेसर्स आते हैं जो आपके आउटलायर्स कौन से हैं, कितने हैं और उसको प्रोसेस कैसे करना है, इसको एड्रेस करते हैं। इसको आउटलायर्स टेस्टिंग कहा जाता है। दैट पार्ट अपार्ट, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि हार्मोनिक मीन एक ऐसा मीन है जो आउटलायर का इफेक्ट नलीफाई कर देता है। समझ में आ रहा है? आपके आउटलायर में कितने आउटलायर्स है, ये अगर आपको इफ सपोज आउटलायर ये चीज ही नहीं मालूम आपको कि ये ऐसी कोई चीज स्टैटिस्टिक्स में एग्जिस्ट करती है और जो आपके रिजल्ट्स पे इन्फ्लुएंस करती है, ये अगर आपको मालूम ही नहीं है तो मुझे लगता है आपने हार्मोनिक मीन कंप्यूट करके वो रिपोर्ट कर देना चाहिए। और ये कैसे कंप्यूट करते हैं, परसों मेरा जो सेशन है उसमें मैं करके भी दिखा दूंगा। एक सिंगल क्लिक पे ये सब आ जाता है। पार्ट अपार्ट, हार्मोनिक मीन एक ऐसा मीन है जो आउटलायर का इफेक्ट नलीफाई करके फ्रेश मीन देती है। और सबसे बड़ी चीज जो आप नोट करके रख सकते हैं कि आपका अरिथमेटिक पहले नंबर का अरिथमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। गेड़ी में अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। यानी क्या, ज्योमेट्रिक मीन फिर से रिड्यूस्ड मीन देता है आपको, एवरेज मीन से हमेशा आपको ज्योमेट्रिक मीन कम दिखेगा और हार्मोनिक मीन आपको ज्योमेट्रिक मीन से फिर से कम दिखेगा। अगर आप ऑर्डर देखते हैं छोटे से बड़े तक, तो सबसे छोटा मीन जो आता है और जो ट्रू रिफ्लेक्शन देता है आपके डेटा सेट का, जिसको रिप्रेजेंटेटिव मीन कहते हैं, वो होता है आपका हार्मोनिक मीन। उसके बाद आता है ज्योमेट्रिक मीन और उसके बाद आता है फिर आपका मीन। और जनरली हम लोग मीन पे सब कैलकुलेशंस करते हैं, अगर वो मीन ही अगर मिसलीडिंग है तो ऑब्वियसली फाइंडिंग्स जो है वो फॉल्टी आएगी। सो दिस अंडरस्टैंडिंग इज प्रेटी इंपॉर्टेंट व्हाट आई बिलीव। और उसके बाद आता है वेटेड एवरेज। ये 6 प्रकार के मीन होते हैं और इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है, क्योंकि हम लोग जब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कंप्यूट करेंगे, अभी समरी स्टैटिस्टिक्स में परसों करके दिखाने वाला हूँ कि एक सिंगल क्लिक पे ये सब फिगर्स आ जाती है और इसका रिपोर्टिंग करना ही है, कंपलसरी है रादर। अगर ये रिपोर्टिंग करना है तो आपको ये सब चीजें जो है इसका मीनिंग एक एक लाइन में एक आम आदमी की भाषा में मालूम होना जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला, ये बोल रहा हूँ कि ज्योमेट्रिक मीन क्या है और वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हार्मोनिक मीन क्या है और वो क्या इंटरप्रिटेशन है उसका, ये मालूम होना जरूरी है। फॉर्मूले रटने की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि स्टैटिस्टिकल प्रोसेसर्स बने हुए हैं, उसको आपको इनपुट देना है, आउटपुट को निकाल के देगा। आउटपुट आने के बाद उसमें जो आ रहा है, उसमें जो वैल्यूज आ रही है, वो उसको रीड करके उसको इंटरप्रेट करते आना चाहिए। और वही मेरी कोशिश है कि एक जस्ट ग्लांस देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं समरी स्टैटिस्टिक्स के 6 बास्केट्स की, जिसमें पहले हमने देखा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, दूसरा जो बास्केट है जिसको हम लोग कहते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। और इसमें जो मेजर्स आपके स्क्रीन पे देख लीजिए, ऐसा मतलब नहीं कि ये 6 ही है, इसके आगे भी है, पर मैं अभी 1.5 घंटे में क्या क्या कवर करूंगा, तो मुझे लगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करो। तो पहले बात करते हैं डिस्पर्शन यानी क्या। डिस्पर्शन का मतलब है स्कैटर, यानी आपका जो डेटा सेट है उसमें फैलाव कितना है, स्कैटर कितना है, डेविएशन कितना है। अभी एक एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ।
मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा जवाब दीजिएगा। वेल आपको स्क्रीन पे विराट कोहली और रोहित शर्मा दिख रहा है? ओके अभी आप विराट कोहली के पिछले 5 मैचेस के उसने जो रन स्कोर किए हुए हैं वो दिख रहे हैं, और रोहित शर्मा के पिछले 5 मैचेस के रन स्कोर किए हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। मुझे आपको ये बताना है कि नेक्स्ट मैच के लिए मुझे अगर ये चॉइस दिया गया कि मैं 2 में से किसी एक का ही सिलेक्शन कर सकता हूँ, तो ये डेटा सेट को एक जस्ट ग्लांस लीजिए और मुझे बताइए कि आप किसको बेटर प्लेयर मानेंगे। मैंने चैट बॉक्स ओपन रखा है, आप आपका आंसर टाइप कर सकते हो। पहला आंसर मिल गया है मुझे शुभश्री मैम से। ओके ओके वेरी गुड। ओके ओके you got basic understand well everyone is saying Rohit Sharma is a better player than Virat Kohli after observing these 5 data points you can say okay अच्छा संदीप सर बोल रहे कि हाँ मैं वही डिस्कशन कर रहा हूँ। संदीप सर ये कैसे मानेंगे कि रोहित इज अ बेटर प्लेयर, मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। वेल आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन पे देखेंगे तो जनरली जो एंट्री लेवल का स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे यूज होना चाहिए, मैंने ना ये एक स्कूल पे मेरा प्रोग्राम था, वहां के स्कूल के बच्चों को मैंने सेम स्लाइड दिखाई थी और उनको पूछा था कि आपको दोनों में से कौन सा प्लेयर बेटर लग रहा है। उन्होंने क्या किया था मालूम है? उन्होंने ये विराट कोहली के जितने भी रन है उसकी टोटल की थी और रोहित शर्मा के रन की टोटल कर ली, क्योंकि उनको स्टैटिस्टिक्स उतना ही आता है ना। आपके मिडिल स्कूल के स्टूडेंट्स थे वो, और उनको जो आता है कि सम करना होता है तो उन्होंने सम किया, और सम करने के बाद ये दोनों का टोटल जो है वो सेम आ रहा है। गेटिंग में? ये दोनों की टोटल अगर आप करते हैं तो ये टोटल सेम आती है। जस्ट अ मिनट, आप देख सकते हो ये दोनों के नंबर ऑफ रन स्कोर 190 है, दोनों के नंबर ऑफ मैचेस प्लेड 5 है, सेम है, तो एवरेज भी दोनों का सेम आएगा, दोनों का एवरेज 38 है। गेटिंग में? अभी ये जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, जो भी डेटा हमारे पास था, उसका जो हम लोगों ने इनिशियल प्रोसेसिंग जो हमको मालूम है वो करने के बाद फिर भी अभी भी डिसीजन जो है वो पेंडिंग है बॉस, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसे बेटर प्लेयर। तो ऐसे वक्त खास करके जहां पे मीन हेल्प नहीं करता है डिसीजन लेने में, वहां पे आपका जो डेटा का स्कैटर है यानी क्या फैलाव जो है वो हेल्प कर देता है डिसीजन लेने में। अभी स्कैटर की अगर बात करते हैं, ये देखिए स्कैटर की अगर बात करते हैं तो आप पहले विराट कोहली के ऑब्जर्वेशंस देखेंगे। उसने मिनिमम नंबर ऑफ रन स्कोर्ड है 7 और मैक्सिमम रन स्कोर्ड है 78। वही अगर आप रोहित शर्मा का स्कोर्स देखते हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ रन स्कोर्ड है 19 और मैक्सिमम है 46, जिसको हम लोग कहते हैं, आपको भी मालूम होगा, रेंज। रेंज का फॉर्मूला है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, और रेंज ये एक एंट्री लेवल का मेजर है डिस्पर्शन मेजर करने के लिए। यानी क्या, जहां पे आपका डिस्पर्शन या स्कैटर डेटा का जहां कम होगा वो डेटा ज्यादा कंसिस्टेंट माना जाता है। यानी यहाँ पे क्या, विराट कोहली इज कंसिडर्ड एज हाईली इनकंसिस्टेंट, यानी क्या उसका कोई भरोसा नहीं है, तो 7 पे आउट हो जाएगा या फिर एकदम 78 बनाएगा। एंड टिपिकली वी डोंट रिलाई मोर ऑन सच काइंड ऑफ प्लेयर्स, वी टिपिकली रिलाई ऑन कि आपको मालूम है कि रोहित शर्मा आएगा तो कम से कम यार 20-25 रन तो बना ही लेगा, दिस इज व्हाट यू गारंटी में। तो यहाँ पे स्कैटर जो है, आपके डेटा का डिस्पर्शन जो है वो कम है। स्कैटर, डिस्पर्शन, डेविएशन, आप कुछ भी बोलिए, यहाँ पे बात हो रही है आपके डेटा सेट पे फैलाव कितना है। फैलाव का मतलब है एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से कितनी दूरी पे है, और उससे भी बड़ी बात मैं आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे समझा रहा हूँ। ये देखिए हम लोग डिसीजन जो ले रहे हैं, संदीप सर ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया था कि मैं एक्सप्लेन करूँ इसको। ये देखिए हमने दोनों की रेंज कैलकुलेट कर ली, और रोहित की रेंज आ रही है 27 और विराट की रेंज आ रही है 71। सो दैट वे विराट इज कंसिडर्ड एज हाईली इनकंसिस्टेंट प्लेयर
whereas your Rohit Sharma is considered as more consistent player and that is why Rohit Sharma should be selected. और ये रोहित शर्मा को पता चल गया तो वो सेलिब्रेट कर रहा है, और विराट कोहली को ये पता चल गया कि वो उसका सिलेक्शन हुआ नहीं है तो ही इज डिजेक्टेड, और आशीष नेहरा जो है वो उसको समझा रहा है कि बेटा तू नाराज मत हो, स्टैटिस्टिक्स का ये ऐसा ही है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ डिस्पर्शन या डेविएशन। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये जो ब्लू कलर की लाइन है बीच में, ये है आपके डेटा सेट का मीन। में ये जो है, ये नीचे के जो बॉल्स देख रहे हैं, मैंने वैल्यूज लिखी नहीं है, पर ये जो है ये आपके इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है। में ये आपके इंडिविजुअल की ऑब्जर्वेशन की कुछ वैल्यूज है। अभी मैं डिस्पर्शन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका ये जो डेटा पॉइंट है ये मीन से कितनी दूरी पे है। मीन आपका यहाँ पे है। में ये मीन से आपका एक पर्टिकुलर डेटा पॉइंट कितनी दूरी पे है, इसको कहते हैं हम लोग डेविएशन, फैलाव, स्कैटर। ये जो डेटा पॉइंट है आप कंपेयर कर सकते हो कि ये पहला डेटा पॉइंट मीन से ज्यादा दूरी पे जा रहा है ना, -1.6 की दूरी पे है। दूसरा जो डेटा पॉइंट है मीन से -0.6 की दूरी पे है। तीसरा जो है ये +0.4 की दूरी पे है। ये अगर हम लोग कंप्यूट करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं डेविएशंस। और आपने जो स्टैंडर्ड डेविएशन सुना होगा ना, स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले आता है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का मतलब ही ये है कि हमने जो ये डेविएशंस निकाले हैं ये डेविएशंस है। अभी यहाँ पे मेरे पास ये D1, D2, D3, D4 और D5 ये अलग से एक डेटा सीरीज तैयार होगी। में इसका जब मैं मीन निकालूंगा तो इसी को हम लोग कहते हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का प्रॉब्लम ये है कि ये डेविएशंस कभी माइनस में आते हैं तो कभी ये प्लस में आते हैं, पर मीन डेविएशन आपका डेविएशन का एवरेज कंप्यूट करते वक्त ये जो साइंस है माइनस, इसको इग्नोर कर देता है। इसलिए मीन डेविएशन या जिसको एवरेज डेविएशन भी कहा जाता है, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ बेटर मेजर ऑफ मेजरिंग योर स्टैंडर्ड योर डेविएशन और डिस्पर्शन यू कैन से। यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है माइनस साइन को इग्नोर करता, उसी के लिए एक बेटर टूल बना हुआ है, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन का अपना एक इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिकल प्रोसेसिंग में, क्योंकि ये माइनस साइन, डेविएशन का जो माइनस साइन है वो कंसीडर करके एवरेज डेविएशन कंप्यूट किया जाता है, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। तो बात तो सिंपल है, ये अगर टेक्निकली समझ में भी नहीं आ रहा होगा, और समरी स्टैटिस्टिक्स में आपके जो मेजर्स है ये 6 मैं दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे। ये देखिए, रेंज के बारे में मैं बात कर चुका हूँ, क्वार्टाइल्स, इंटर क्वार्टाइल रेंज जिसको IQR कहते हैं, मीन डेविएशन जो अभी मैंने आपको समझाया, स्टैंडर्ड डेविएशन, और वरायंस। वरायंस इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर को हम लोग वरायंस कहते हैं। और खास करके ये जो चीज है रेंज और ये हम लोग हमेशा रिपोर्ट करते हैं हमारे रिसर्च डॉक्यूमेंट में, और उसका मतलब मैंने आपको समझा दिया है। देखिए यहाँ से ना पता चल जाता है कि आपके रिसर्च की क्वालिटी क्या है। में अभी एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल है। मैं कंसल्टेंसी भी करता हूँ रिसर्च की। तो एक लेडी मेरे पास आई थी और उन्होंने मुझे बोला कि सर एक रिसर्च पेपर लिख रही हूँ और प्रोसेसिंग हो चुका है, तो आप एक बार देख लीजिए कि ये ठीक है क्या। तो मैंने उनको बोला मैडम अभी यू आर जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ सबमिटिंग योर पेपर, तो मुझे मत दिखाइए, हो सकता है मैं अगर कुछ बता दूं उसमें तो आपको फिर से जीरो से शुरू करना होगा काम, या कुछ चेंजेस करने होंगे। तो वो लेडी बोली कि नहीं सर आप अगर एक बार देख लेंगे तो मुझे तसल्ली आ जाएगी। तो वो इंसिस्ट कर रही थी, तो मैंने वो देख लिया, और वहां पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का, समरी स्टैटिस्टिक्स का एक टेबल जो मैं आपको परसों पढ़ाने वाला हूँ, वो टेबल वहां पे था। ऑब्वियसली वो रहता ही है, इट इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट यू कैन से। वो वहां पे था और मुझे वहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने चेक किया और मीन चेक किया, और वो चेक करने के बाद मैंने मैडम को एक ही लाइन में पूछा कि मैडम ये जो डेटा आपने प्रोसेस किया हुआ है, ये डेटा आपने घर में क्यों कुक किया है, आपने रियल लाइफ में जाके या आपने जेन्युइनली डेटा क्यों नहीं कलेक्ट किया। तो वो मैडम का कहना ये था कि सर नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपको किसने बताया ऐसा कुछ। तो मैंने बोला मैडम आपका डेटा बात कर रहा है। तो उसमें इंसाइट्स ये थे कि जनरल सेंस में, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आपका स्टैंडर्ड डिविएशन मीन से ऊपर नहीं जाता है, यानी में। और वो लेडी का गया था, मीन से ऊपर स्टैंडर्ड डिविएशन था। और ये ना इंसाइट्स देते हैं कि आपका मीन और स्टैंडर्ड, मीन के कंपैरिजन में स्टैंडर्ड डिविएशन जितना कम होगा उतना आपका रिसर्च का क्वालिटी और आपकी फाइंडिंग जो है वो रिलायबल मानी जाती है।
और ये इंसाइट्स लगते हैं आपके इवेल्युएटर्स को, आपके पीएचडी के जो एग्जामिनर्स आते हैं वो ये चीजें देखते हैं। या फिर आप कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो और आपने सबमिट किया है और आपको लगता है कि यार ये पीयर ओके नहीं कर रहे, तो वो पीयर भी ये सब देखते हैं, यानी में। और आपको भी एज ए इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर आपको भी ये इंसाइट्स होने चाहिए कि क्यों आप क्वालिटी रिपोर्टिंग करेंगे ना, यानी में। तो इसके थोड़े से इंसाइट्स अगर मिल जाते हैं तो काम करने में ना मजा आ जाता है। सो पार्ट अपार्ट, डिस्पर्शन जो दूसरा समरी स्टैटिस्टिक्स का मेजर है, ये बात करता है आपके डेटा का स्कैटर, आपके डेटा का डिस्पर्शन या फिर आपके डेटा में डेविएशन कितना है, आपकी हर एक इंडिविजुअल वैल्यू मीन वैल्यू से कितनी दूरी पे है, ये बताने का काम आपके डिस्पर्शन के मेजर्स करते हैं। और वैरिएंस वगैरह वो वही चीजें रिफ्लेक्ट करती है। हम लोग जा रहे हैं तीसरे डेटा सेट, तीसरे बास्केट पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की। वो है मेजर्स ऑफ सिमेट्री, या कुछ किताबों में इसको मेजर्स ऑफ असिमेट्री कहते हैं। मैं एक लाइन में फिर से मेरी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोगों ने बात की मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो बात करती है एवरेजेस की। हम लोगों ने बात की मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की, जो बात करते हैं डेटा के स्कैटर की। वैसे ही एक लाइन में मैं आपको समझा रहा हूँ मेजर्स ऑफ सिमेट्री या असिमेट्री क्या है। मेजर्स ऑफ सिमेट्री या असिमेट्री बताती है कि आपका डेटा को अगर प्लॉट किया तो वो शेप कैसे एज्यूम करता है, जिसको स्टैटिस्टिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, कि आपके डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। आपने शायद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ये सुना तो होगा, उसकी टेक्निकलिटीज में नहीं जाते हैं। पर मेजर्स ऑफ सिमेट्री आपको ये बताती है कि आपका डेटा नॉर्मल है या नहीं है। और आपको भी मालूम है कि नॉर्मल डेटा होना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को पैरामेट्रिक टेस्ट परफॉर्म करनी है, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, जो आप जानते हैं, परसों हम लोग ये करने वाले भी हैं। तो आपको मालूम है कि द बेसिक रिक्वायरमेंट इज योर डेटा शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो वो डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, ये बताने का काम आपके मेजर्स ऑफ सिमेट्री या असिमेट्री कहते हैं। इसमें 3 मेजर्स आते हैं, आपकी स्क्रीन पे 2 ही दिख रहे हैं, स्क्यूनेस, कर्टसीज। तीसरी चीज आती है मोमेंट्स। और मोमेंट्स इंजीनियरिंग में ज्यादा चलता है, इसलिए मैंने वहां पे मेंशन नहीं किया है। पर स्क्यूनेस और कर्टसीज ये 2 इंपॉर्टेंट मेजर्स है जो आपको रिसर्च पेपर या थीसिस में रिपोर्ट करना कंपलसरी है। अभी बात करते हैं स्क्यूनेस यानी क्या और कर्टसीज यानी क्या। स्क्यूनेस का मतलब है झुकाव, एक तरफ झुकाव, कि आपका डेटा का झुकाव कैसा है। देखिए, झुकाव के 3 प्रकार होते हैं। ये है आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, आपको बेल शेप का ये तो मालूम होगा फॉर श्योर, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। आपके डेटा को प्लॉट करने के बाद आपके डेटा का शेप क्या इस तरीके से आ रहा है, या फिर वो इस तरीके से आ रहा है, या फिर ये इस तरीके से आ रहा है। ये 3 मेजर पॉसिबिलिटीज होती है। यानी में अभी आपका स्क्यूनेस जब आप कंप्यूट करते हैं, हम लोग परसों एक डेमोन्स्ट्रेशन लेंगे, वहां पे मैं कंप्यूट भी करके दिखा दूंगा सिंगल क्लिक पे। पार्ट अपार्ट अभी तो कंसेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। ये बताने के लिए जो मेजर्स है वो है स्क्यूनेस और कर्टसीज। स्क्यूनेस बताता है डेटा का शेप और कर्टसीज बताता है हाइट। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तब होता है जब वो डेटा का शेप नॉर्मल आता है, और ये जो हाइट है इसको कहते हैं ऑर्डिनल। ये एक ऑप्टिमम हाइट होती है इसकी। और आपका डेटा प्लॉट करने के बाद भले ही वो बेल शेप आ रहा है, पर क्या ये हाइट आपकी डेटा ने ऑप्टिमम हाइट अचीव की है, वो जानने का परिमाण है आपका कर्टसीज। आप ऊपर देख सकते हो कर्टसीज। तो आपके स्क्यूनेस के 3 प्रकार हैं। ये है नॉर्मल, जिसको कहते हैं ये है आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। ये है आपका निगेटिवली स्क्यूड डेटा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, निगेटिवली स्क्यूड एंड पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा कहते हैं। और दूसरी चीज है हाइट के बारे में, ये 3। ये है मेसोकर्टिक। मेसोकर्टिक मीन्स नॉर्मल, शेप भी है और हाइट भी है, जिसको कहते हैं मेसो। दूसरी एक पॉसिबिलिटी है बेल शेप तो आ रहा है, पर ये हाइट जो है ये ऑप्टिमल से ऊपर जा रही है, इसको कहते हैं हम लोग लेप्टोकर्टिक डेटा। के इज कर्टसिस, कर्टसिस इज ग्रेटर देन 0। और तीसरी एक पॉसिबिलिटी है कि ये बेल शेप तो आ रहा है पर हाइट अचीव नहीं हो रही है, नॉर्मल हाइट से कम आ रही है। इसको हम लोग कहते हैं प्लेटोकर्टिक। प्लेटो मीन्स फ्लैट, फ्लैट सरफेस। और ये आप देख रहे हैं जैसे बर्गर जैसा ये दिख रहा है। तो आप ये जब मेजर रिपोर्ट करते हो स्क्यूनेस और कर्टसिस, इससे इवैल्यूएटर को पता चल जाता है कि आपने जो टेस्ट लगाई हुई है वो सही में लगती है कि नहीं। आपने सपोज एनोवा करके रखा हुआ है, तो वो एनोवा सही टेस्ट है क्या वहां पे, वो जानने के लिए मेरे पास मेजर है कि आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या। और आपके ये जो 2 मेजर्स है स्क्यूनेस और कर्टसिस, ये मुझे बता देंगे कि आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। कहीं पे लिख के रख दो आप,
स्क्यूनेस कंप्यूट करने के बाद अगर वो -0.5 और +0.5 के बीच में आता है तो आपका डेटा नॉर्मल कहा जाता है। और कर्टसीज के लिए भी सेम है क्राइटेरिया। आपका कर्टसीज कंप्यूट करने के बाद अगर कर्टसीज का फिगर -0.5 और +0.5 के बीच में आ जाता है तो आपका डेटा मेसोकर्टिक यानी नॉर्मल हाइट वाला है, ऑप्टिमम हाइट वाला है, ये कंसीडर किया जा सकता है। और अगर आपने ये पर्टिकुलर -0.5 और +0.5 के बीच में आपका स्क्यूनेस कर्टसिस के मेजर्स आए और आपने एनोवा किया है तो आपकी एनोवा की स्टेज जो है वो आपने सही की हुई है। ये देखिए, ये एक टेबल है जिसमें 16 मेजर्स आते हैं समरी स्टैटिस्टिक्स के, जो हम लोग कल करेंगे, सॉरी परसों मेरा लेक्चर है, उसमें हम लोग ये सिंगल क्लिक पे जनरेट करेंगे और ये आपको रिपोर्ट करना होता है। देखिए 6 बास्केट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के, जिसमें चौथी बास्केट्स है मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप्स। इसमें 3 चीजें आती हैं, कोवरेंस एनालिसिस, कोरिलेशन एनालिसिस और रिग्रेशन एनालिसिस। देखिए कोवरेंस जो है ये इतना ज्यादा प्रचलित नहीं है, क्योंकि कोवरेंस का जो मेजर आता है, कोवरेंस कोएफिशिएंट जिसको कहते हैं, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ स्टैंडर्ड कोएफिशिएंट। स्टैंडर्ड का मतलब है आपकी वैल्यू इफ सपोज कोवरेंस की वैल्यू इफ सपोज -5 आई है और किसी की अगर -50 आई है, तो ये दोनों में से आपके पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि -5 कम है, बराबर है कि ज्यादा है, या -50 कम है या ज्यादा है। ये बताने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए इसको अनस्टैंडर्डाइज मेजर कहा जाता है। वही अगर कोरिलेशन की बात करते हैं तो कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये स्टैंडर्डाइज मेजर है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके कार्ल पियर्सन के आर की वैल्यू हमेशा ही -1 टू +1 के बीच में ही कहीं आएगी। अगर वो 0 आती है तो हम लोग बोलेंगे कि दो वेरिएबल में रिलेशनशिप डजंट एग्जिस्ट। अगर वो -0.5 आती है तो वी विल से दैट कि कोरिलेशन एग्जिस्ट, इट इज negative in direction and it is a moderate, means the strength is moderate. This is what we can interpret by referring to Karl Pearson's R. So covariance बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है और रिपोर्ट जनरली नहीं करते हैं, इसलिए मैं सिर्फ कोरिलेशन और रिग्रेशन की एक एक लाइन में, जैसे अभी तक बताते आ रहा हूँ, एक एक लाइन में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कोरिलेशन में बात करता है कि आपके वेरिएबल में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है क्या, यानी आपके वेरिएबल्स, ये न्यूमेरिकल वेरिएबल जिसको स्केल कहा जाता है या मेट्रिक वेरिएबल्स कहा जाता है। मेट्रिक वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स व्हिच आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और दीज आर मेजर्ड। जैसे आप टेम्परेचर या फिर आप लाइफ साइंसेस में जो भी ऑब्जर्वेशंस लेते हो एक्सपेरिमेंट करके, उसका जनरली कोई एक यूनिट होता है। यानी जैसे आप टेम्परेचर ले रहे हो तो उसका आप फ़ारेनहाइट या फिर आप उसको डिग्री सेल्सियस में बता सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, कोई भी। आप अगर लेंथ की बात करते हो सेंटीमीटर, मीटर, तो ये मेट्रिक डेटा है जिसको अपने कुछ यूनिट्स होते हैं और दीज आर एक्सप्रेस इन टिपिकली नंबर्स। तो आपके पास ऐसा डेटा है तो आप कोरिलेशन और रिग्रेशन दोनों परफॉर्म कर सकते हो। कोरिलेशन और रिग्रेशन एक एक लाइन में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके पास दो वेरिएबल्स है x और y, और वो दोनों स्केल या मेट्रिक वेरिएबल है, यानी नंबर्स में एक्सप्रेस किए हुए हैं। तो कोरिलेशन 3 चीजों को एड्रेस करता है, x और y में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं, यानी में डज रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y एग्जिस्ट, ये पहला इशू कोरिलेशन एड्रेस करेगा। दूसरा इशू, इफ एट ऑल रिलेशनशिप एग्जिस्ट देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। डायरेक्शन पॉसिबली 2 डायरेक्शंस होते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। तीसरा है स्ट्रेंथ, मीन्स उसमें इंटेंसिटी कितनी है, वो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है तो उसका स्ट्रेंथ कितना है। जैसे अगर हम लोग बोलेंगे कि 0.8 r इज इक्वल टू +0.8, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं यार अच्छी खासी रिलेशनशिप है। अगर मैं वही बोल रहा हूँ कि r आपका 0.1 आ रहा है पॉजिटिव, तो मैं बोलूंगा यार ये रिलेशनशिप है पर ये इसमें स्ट्रेंथ नहीं लग रही है। सो दिस 3 इश्यूज योर कोरिलेशन एनालिसिस एड्रेसेस। और रिग्रेशन जो है ये 2 चीजों पे फोकस करता है। एक है प्रेडिक्शन, कि आपको अगर x की वैल्यू चेंज की तो y में क्या चेंज आएगा, जिसको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कहते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ डेप्थ ऑफ टाइम मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा पा रहा हूँ, पर 2 वेरिएबल्स होते हैं रिग्रेशन में, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंज करते हो तो रिस्पेक्टिव चेंजेस y में क्या आते हैं वो देखने के लिए हम लोग रिग्रेशन करते हैं, जिसको प्रेडिक्शन कहा जाता है। और दूसरा जो पर्पस रिग्रेशन करता है वो है इम्पैक्ट, कि y में अगर चेंज किया तो x में क्या, x में अगर चेंज किया तो y में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ये देखने के लिए हम लोग रिग्रेशन कहते हैं। अभी एक लाइन में मैं समराइज कर रहा हूँ कोरिलेशन और रिग्रेशन को। इफ सपोज कोई एक ब्रेन टॉनिक है, ब्रेन टॉनिक बनाने वाली कंपनी है, उसका ब्रांड इफ सपोज x है, और वो उन्होंने ये क्लेम किया है एडवर्टाइजमेंट्स में कि ये टॉनिक स्टूडेंट्स ने कंज्यूम करने के बाद मेमोरी इंप्रूव होती है और उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। यानी
अभी मुझे ये एम्पिरिकली टेस्ट करना है कि सही में वो ब्रेन टॉनिक इफेक्टिव है क्या, और जो कंपनी क्लेम कर रही है वो सही है क्या। यानी क्या, एक तरफ है आपके पास दो वेरिएबल्स एक्स और वाई, एक से मेरा इंडिपेंडेंट जहां पे आपका वो ब्रेन टॉनिक का एमएल में कंजम्पशन, और दूसरी तरफ है मेरे एकेडमिक मार्क्स। यूनिट टेस्ट मैं अगर इफ सपोज हर 15 दिन में यूनिट टेस्ट ले रहा हूँ और 15 दिन के डोसेजेस मैंने फिक्स कर लिए हैं। पहले 15 दिन के लिए मैंने इफ सपोज 15 ml का डोज, फिर 20 ml, फिर दिस वे मैं बढ़ाते जा रहा हूँ या कम करते जा रहा हूँ। तो मेरे पास एक्स और वाई न्यूमेरिकली एक्सप्रेस है, और मैं ये चेक कर रहा हूँ कि सही में वो ब्रेन टॉनिक कंज्यूम करने के बाद आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है क्या। तो मैं कोरिलेशन कर रहा हूँ, यानी मैं मीन्स ओवर हियर आई एम चेकिंग वेदर देयर इज एनी रिलेशनशिप exists between these two variables. If I wish to examine this, then I am resorting to correlation. Regression is more predictive in nature. यहाँ पे मैं ये सिमिलर प्रोजेक्ट में रिग्रेशन में क्या करूंगा, मैं कितना ब्रेन टॉनिक कंज्यूम करूंगा तो मुझे कितने मार्क्स आएंगे। यानी में ये अगर आपको प्रेडिक्शन निकालना है तो हम लोग रिग्रेशन की बात करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव या समरी स्टैटिस्टिक्स के ये कुछ मेजर्स है, और ये एक ऐसा पार्ट है, कोरिलेशन और रिग्रेशन ये दोनों में जाता है, इन्फरेंशियल में भी जाता है ये और डिस्क्रिप्टिव में भी आता है। सिर्फ अगर आप आर कार्ल पियर्सन का आर कंप्यूट कर रहे हो तो वो हो गया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और अगर वो उसी आर का आप टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस कर रहे हो तो वो जाता है इन्फरेंशियल में। और सिमिलर इज द केस विथ योर रिग्रेशन, आप मॉडल बना देते हो सिंपल y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो वो हो गया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। और अगर आप बीटा कोएफिशिएंट का अगर आप सिग्निफिकेंस टेस्ट कर रहे हो तो वो जाता है इन्फरेंशियल में। तो इट इज एन ओवरलैप ऑफ बोथ, मीन्स डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल। उसके बाद आता है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। देखिए कोरिलेशन दो वर्ड है, हाँ, एक रिलेशनशिप जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया और दूसरा है एसोसिएशन। और बहुत सारे लोगों को मैंने इसको सिनोनिमसली या इंटरचेंजेबली यूज करते हुए देखा। मैं डिफरेंस बता देता हूँ दोनों टर्म में। देखिए कोरिलेशन दो न्यूमेरिकल वेरिएबल का चेक किया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अभी इफ सपोज हम लोगों को हाइट और वेट, इसमें कोई रिलेशनशिप है क्या, ये अगर चेक करना है तो एक्स और वाई, एक्स इफ सपोज हाइट एंड वाई इज वेट, तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल मेरे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस है, तो यहाँ पे मैं कोरिलेशन करूंगा। और आपके पास एक्स और वाई ये दोनों नंबर में नहीं है और आपके पास कैटेगोरिकल वेरिएबल्स है, तो ऑब्वियसली उस वक्त आपको अगर रिलेशनशिप चेक करनी है तो उसको हम लोग कहते हैं एसोसिएशन। यानी में अभी एक एग्जांपल की बात करते हैं। इफ सपोज मुझे ये चेक करना है कि स्मोकिंग करने से लंग कैंसर होता है क्या। यानी में हमारे पास हमने जो हमारे टारगेट रेस्पोंडेंट्स है उनको पूछा कि डू यू स्मोक, यस और नो, यानी कि हमारे पास दो कैटेगरीज आ गई, एक हो गई स्मोकर्स और दूसरे नॉन स्मोकर्स। और हमने उनके ऑब्जर्वेशंस लिए कि वेदर दे आर सफरिंग फ्रॉम लंग कैंसर, यानी में तो वहां पे भी दो डाइकोटोमस आंसर्स आ जाएंगे, सफरिंग नॉट सफरिंग। तो यहाँ पे मेरे पास एक कॉन्टिजेंसी क्रॉस टेबल जिसको बोलते हैं वो क्रॉस टेबल बन जाएगा, और मैं परसों ये काई स्क्वायर टेस्ट हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं इस पे, और मैं ये परसों करके भी दिखा दूंगा आपको। तो हम लोगों को ये चेक करना है कि स्मोकिंग एंड ऑकरेंस ऑफ योर लंग कैंसर, इसमें कोई कनेक्शन है क्या। ये चेक करने के लिए हमारे पास दोनों वेरिएबल का डेटा नंबर में नहीं है, कैटेगरीज के फॉर्म में है, तो उस वक्त हम लोग जो करते हैं उसको हम लोग टेस्ट ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। और इसमें काई स्क्वायर टेस्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर है जो मैं परसों करके भी दिखाऊंगा। तो इसमें हम लोग बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन की, वहां पे हम लोग बात कर रहे थे कोएफिशिएंट ऑफ कोवरेंस, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्टिजेंसी, क्रैमर भी एक मेजर आता है यहाँ पे, तो ये हम लोगों को रिपोर्ट करने होते हैं। और अदर मेजर्स में जाते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के इंडेक्स नंबर जो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में यूज होते हैं, इसलिए मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। और फिर है आपकी टाइम सीरीज एनालिसिस, खास करके आपके लॉन्जिट्यूडिनल अगर कोई स्टडीज है, लॉन्जिट्यूडिनल यानी 20 साल से ऊपर के पीरियड के लिए अगर आप कोई डिसीजेस का स्टडी कर रहे हैं तो उसको लॉन्जिट्यूडिनल, और ये ऑनगोइंग स्टडीज होती है, ये रिकरेंटली होते रहती है फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। हम लोग लास्ट सेक्शन में जा रहे हैं, 6 मिनट है मेरे पास, मैं जिस तीसरे सेक्शन में जा रहा हूँ, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। प्रीति मॅडम काही डिस्टर्बन्स आहे का आवाजात? नाही सर, ठीक आहे. बरं, मी प्रोसीड करता है। ओके. वेल, हम लोग तीसरे सेक्शन में जा रहे हैं और आपके बायोस्टैटिस्टिक्स का दूसरा बास्केट जिसको हम लोग कहते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का वन लाइन डेफिनेशन है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन यानी क्या, जब आप सैंपल को एग्जामिन करके पॉपुलेशन के बारे में इन्फरेंसेस निकालते हो तो उसको इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। एक सिंपल सा डेली लाइफ का एग्जाम्पल अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, आपको इफ सपोज 50 kg वेट गेहूं परचेस करने हैं,
तो आप जब ग्रोसरी शॉप में जाते हैं तो आपके सामने जब सैक लाके रखा जाता है तो हम लोग पूरे के पूरे दाने वो सैक के एग्जामिन नहीं करते हैं। वी टिपिकली टेक आउट अ हैंडफुल ऑफ मास। वो शायद 50 ग्राम होगा। हम लोग वो सिर्फ 50 ग्राम जिसको सैंपल कहते हैं हम लोग, वी एग्जामिन सैंपल एंड वी इन्फर अबाउट अ लार्जर लॉट। यानी 50 ग्राम एग्जामिन करके 50 किलो के बारे में इन्फरेंसेस निकालने की जो प्रोसेस है उसी को हम लोग इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अभी साइंटिफिक वर्ड में अगर इसको डिफाइन करना है, examining a sample to derive inferences about target population, this process is typically considered as inferential statistics. जो महिलाएं अभी यहाँ पे जुड़ी हुई है, आप घर में सब्जी बनाते हो ना, तो वो सर्व करने से पहले हम लोग एक बार चेक करते हैं कि उसमें नमक मिर्च और बाकी मसाले ठीक प्रोपोर्शन में पड़े हैं क्या, उसकी टेस्ट सही आई है क्या सब्जी की। तो हम लोग ना जो पैन में कढ़ाई में जो सब्जी रखी हुई होती है उसमें से वी जस्ट टेक आउट अ स्पूनफुल ऑफ इट एंड वी जस्ट टेस्ट इट एंड वी इन्फर अबाउट कि सब्जी अच्छी है या नहीं है। यानी में तो छोटे लॉट को एग्जामिन करके बड़े लॉट के बारे में इन्फरेंसेस निकालने के लिए स्टैटिस्टिक्स में जो मेथड्स अवेलेबल है उसी को हम लोग इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स कहते हैं। बात करते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस की। देखिए, हम लोग जब भी रिसर्च पेपर लिखते हैं या फिर हम लोग रिसर्च थीसिस बनाते हैं तो हम लोगों को स्टैटिस्टिकल इन्फरेंसेस डिराइव करने होते हैं। एनालिसिस करना उसका मतलब सिर्फ ग्राफ बनाना या फिर सिर्फ समरी स्टैटिस्टिक्स कंप्यूट करना नहीं होता है। हाँ, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, पर उसमें से इन्फरेंसेस नहीं निकाल सकते। इन्फरेंसेस निकालते हैं टेस्टिंग से। बात करते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस यानी क्या। स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस में दो चीजें आती हैं, वो समझाने के लिए देखिए, एक ये पिक्चोरियल डायग्राम है, ये मेरा पॉपुलेशन है। इफ सपोज दीज आर पेशेंट्स विच आर टिपिकली क्वाइट लार्ज इन नंबर, यानी में ये थाउजेंड्स में या लाख में या कभी कभी तो करोड़ में भी होते हैं। तो इन सबको एग्जामिन करना इज वर्चुअली इम्पॉसिबल। सो दैट इज व्हाई व्हाट डू वी टिपिकली डू, we typically take out a small lot which is typically considered as sample, और हम लोग डेटा सिर्फ सैंपल का कलेक्ट करते हैं और सैंपल का डेटा कलेक्ट करके हम लोग उसको प्रोसेस करते हैं और उसका मीन मोड मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन वैरिएंस वगैरह कंप्यूट करते हैं। तो जब हम सैंपल का डेटा कलेक्ट करके जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कंप्यूट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं सैंपल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये सपोज ये है 10 लाख और 10 लाख में से आपने 500 का सैंपल लिया है और आपने जो डेटा प्रोसेसिंग किया है वो सिर्फ 500 पे किया है और आपने 500 का मीन निकाला है गिडी में। पर इंटरेस्ट हम लोगों को ये है कि ये 500 का मीन इतना है तो पॉपुलेशन का यानी 10 लाख का मीन क्या है वो जानने के लिए हम लोग जो करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। यानी क्या, सैंपल का मीन मोड मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन वैरिएंस परसेंटेज फ्रीक्वेंसीज इसको हम लोग कहते हैं सैंपल स्टैटिस्टिक्स। और वही चीजें पॉपुलेशन के लिए भी कंप्यूट की जा सकती है। पॉपुलेशन का भी तो अपना मीन मोड मीडियन वैरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड एरर ये सब पॉपुलेशन भी तो होते हैं, पॉपुलेशन के भी तो होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर्स। यानी क्या, वन लाइन डेफिनेशन जो है स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस की, सैंपल स्टैटिस्टिक्स यूज करके पॉपुलेशन पैरामीटर्स का एस्टिमेशन करना, उस प्रोसेस को स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस कहते हैं। स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस करते वक्त दो चीजें आती है, एक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग जिसको टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस कहा जाता है और दूसरा होता है एस्टिमेशन ऑफ सीआई। सीआई का मतलब है कॉन्फिडेंस इंटरवल, जो परसों मेरा लेक्चर है उसमें मैं समझा दूंगा आपको। अभी बात करते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अभी जैसे मैंने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बास्केट्स आपको दिखाई थी वैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग की 4 बास्केट्स है। ये 4 बास्केट्स यानी हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये जो पूरा प्रकार है उसकी 4 अपैरेंट बास्केट्स है। इसमें पहला जो पार्ट है जिसको कहते हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस। यूनि का मतलब है सिंगल और वेरिएट का मतलब है वेरिएबल। जब आप हाइपोथेसिस स्टेटमेंट फॉर्मुलेट करते हो तो उसमें आपने नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने मेंशन किए हुए हैं वो डिफाइन करेगा कि आपको हाइपोथेसिस टेस्ट कौन सी करनी है। अगर आपने हाइपोथेसिस के स्टेटमेंट में सिंगल वेरिएबल को मेंशन किया हुआ है तो आपको यूनिवेरिएट एनालिसिस करना होगा। यूनिवेरिएट एनालिसिस में हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जो चॉइसेस है वो लिमिटेड है। जेड टेस्ट और टी टेस्ट ये बहुत ही पॉपुलर और कॉमन सी टेस्ट है यूनिवेरिएट एनालिसिस में। उसके बाद आता है बायवेरिएट एनालिसिस। बाय का मतलब है टू, वेरिएट का मतलब है वेरिएबल्स। जब आपने हाइपोथेसिस के स्टेटमेंट में 2 वेरिएबल्स को मेंशन किया हुआ है और उसका टेस्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसको हम लोग बायवेरिएट टेस्टिंग कहते हैं। बायवेरिएट टेस्टिंग में जो बहुत ही कॉमन टेस्टिंग है वो है कंपैरिजन बेस्ड। आप एक्स और वाई ये 2 ग्रुप का कंपैरिजन कर रहे हैं या फिर आप एक्स और वाई ये 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप है या नहीं है ये चेक कर रहे हैं। तो बेसिकली ये
बायवेरिएट एनालिसिस का प्रकार है और उसमें इसमें फिर से टी टेस्ट और आपकी जेड टेस्ट आती है और उसमें 3 प्रकार की टी टेस्ट आती है जो हम लोग परसों देखेंगे, समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप करके भी दिखा देंगे और मैं आपको प्रैक्टिकल्स भी उस दिन करके दिखाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप समझा भी दूंगा। तीसरा जो पार्ट है जिसको कहते हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस। मल्टी का मतलब है मेनी, 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स अगर आपने हाइपोथेसिस स्टेटमेंट में लिखे हुए हैं और आपको 2 से ज़्यादा वेरिएबल का इन वन गो एनालिसिस या टेस्ट परफॉर्म करना है, तो उसको हम लोग मल्टीवेरिएट कहते हैं और मल्टीवेरिएट में एनोवा जो आपको मालूम है एनालिसिस ऑफ फॉरेंस, वो मल्टीवेरिएट की टेक्निक है और उसमें बाकी भी टेक्निक्स है जैसे मल्टीपल कोरिलेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, आपका कॉन्जॉइंट एनालिसिस आप बोल सकते हो, आपका डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस या फिर स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, ये सब प्रकार जो है आपके मल्टीवेरिएट एनालिसिस में जाते हैं। और चौथी जो बास्केट है जिसको हम लोग कहते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। देखिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग को फिर से 2 हिस्सों में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक। इसका सिंगल लाइन डेफिनेशन मैं बता देता हूँ जिससे अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था पॉपुलेशन के पैरामीटर्स और सैंपल के स्टैटिस्टिक्स। पॉपुलेशन के पैरामीटर स्टैटिस्टिक्स में 3 पैरामीटर्स माने जाते हैं, आप नोट भी कर लेंगे। स्टैटिस्टिक्स में 3 पैरामीटर्स माने जाते हैं क्योंकि हम लोग पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक जो बोल रहे हैं ना, पैरामेट्रिक ये वर्ड में पैरामीटर ये वर्ड से पैरामेट्रिक ये वर्ड बना है, तो उससे पहले पैरामीटर क्या है वो समझना जरूरी है ना। तो पैरामीटर 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है मीन जिसको एवरेज कहते हैं हम लोग, दूसरा परसेंटेज और तीसरा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी में कोई भी टेस्ट परफॉर्म करते वक्त, कोई भी हाइपोथेसिस टेस्ट परफॉर्म करते वक्त आप अगर आपके डेटा सेट का मीन या फिर परसेंटेज या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, इन तीनों में से किसी 2 का कॉम्बिनेशन का यूज कर रहे हैं, यानी मीन विद एसडी एंड परसेंटेज विद एसडी, ये कॉम्बिनेशन अगर आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यूज कर रहे हैं तो आप पैरामेट्रिक टेस्ट कर रहे हैं। अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन, परसेंटेज और मीन यूज नहीं कर रहे हैं और फिर भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उसमें आप एक्चुअली नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कर रहे हैं। देखिए नॉन पैरामेट्रिक में टिपिकली काउंटेड डेटा या कैटेगोरिकल डेटा पे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की जाती है। जैसे अभी मैं एग्जांपल दे रहा था आपको, स्मोकिंग, नॉन स्मोकिंग एंड ऑकरेंस ऑफ योर लंग कैंसर एंड नॉन ऑकरेंस ऑफ लंग कैंसर। तो यहाँ पे ना ही मीन निकल रहा है, ना ही यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकल रहा है, तो यहाँ पे टेस्ट परफॉर्म भी हो रही है, तो वो है आपकी chi-square टेस्ट। तो chi-square is the most popular non-parametric test which is widely used in medicine and your life sciences as well, and in social sciences, management. It is so pervasive, it is a very popular test you can say। और परसों मैं आपको ये करके भी दिखा दूंगा। पर फॉर द टाइम बिंग आई एम वाइंडिंग अप माय डिस्कशंस एंड आई एम जस्ट समराइजिंग द थिंग्स कि पिछले 90 मिनट में हमने क्या देखा। तो मैंने आपको बायोस्टैटिस्टिक्स का ओवरव्यू दिया है और आपको अभी पता चल गया है कि स्टैटिस्टिक्स 2 प्रकार का होता है, डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स या टारगेट पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं और जिसमें डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स आती है और समरी स्टैटिस्टिक्स आता है। और दूसरा जो पार्ट है स्टैटिस्टिक्स का जिसको हम लोग इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, और सैंपल को एग्जामिन करके हम लोग पॉपुलेशन के बारे में जब इन्फरेंसेस निकालते हैं तो उसको इन्फरेंशियल कहते हैं। और इन्फरेंशियल एक कॉमन आदमी के, एक आम आदमी की भाषा में इसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहा जाता है। और जब भी आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करते हैं तो उसको हम लोग इन्फरेंशियल एनालिसिस कहते हैं और उसपे 4 बास्केट्स आती है, यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट, मल्टीवेरिएट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। So I am winding up my discussions now, and if you are having any queries with regard to today's session, your queries are welcome. I will try to resolve your queries if there are any. Thanks for patience listening, and I have a very great day. Preeti madam, over to you. हाँ, यस सर। किसी को कुछ डिफिकल्टी है? सर परवाच्या सेशन मध्ये आपण हे सगळं करून बघणार आहोत का? हो, मोस्टली मी टेस्टिंग करून दाखवेल, इन्फरेन्शियलचा पार्ट आणि डिस्क्रिप्टिव्ह करून दाखवेल मी. ओके सर, या लोकांना काही प्रिपरेशन करायचं आहे त्यासाठी? काहीच नाही, ऍब्सोल्युटली काहीच नाही. आजचं लेक्चर ज्यांनी अटेंड केलाय त्यांना ऍब्सोल्युटली 0 प्रिपरेशनची गरज आहे. ओके, तर सायमल्टेनियसली हे लोक पण करतील का सर? नाही, मी डेमॉन्स्ट्रेशन करून दाखवेल. व्हिडिओ आपण रेकॉर्ड करतो आहोत, ओके, तो शेअर करून टाकू आपण त्यांना. यांना कारण टास्क देता येईल का म्हणजे या टेस्टवर? आपण मी तुम्हाला डेटा शीट्स देऊन देईल आणि ज्या टेस्ट मी शिकवणार आहे ते त्यांच्या डेटा शीटवर परफॉर्म करून तुम्हाला असाइनमेंटच्या फॉर्ममध्ये सबमिट करू शकते. ओके सर। सो फ्रेंड्स, आपको ये पूरे टॉपिक पे असाइनमेंट रहेगा, सो यू हैव टू बी अटेंटिव, कारण की या लेक्चर्समध्ये मला 3-4 जण अब्सेंट दिसतात आहे आज,
सो आज का लेक्चर अगर आपका मिस हुआ होगा तो परसों के सेशन में शायद आपको डिफिकल्टी जाएगी. ऐसा नहीं है, स्टैटिस्टिक थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, नो डाउट, बट यू शुड बी अटेंटिव. सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि परसों के सेशन में आप सबको प्रेजेंट रहना है. सर जो भी असाइनमेंट देते हैं दैट यू हैव टू फिनिश. और कुछ भी डिफिकल्टी आती है तो आप सर से पूछ सकते हैं. ओके, सो थैंक यू वेरी मच सर. Thanks, sir. ओके, मैम सर नेक्स्ट वो परसों के सेशन में आप एनोवा और टी टेस्ट बताने वाले हैं सर. मैं 4 से 5 टेस्ट कवर करने की कोशिश करूंगा. एक बार देखते हैं कि स्पीड आपकी, मेरी स्पीड तो ठीक है, आप कितना वो स्पीडली पकड़ सकते हो. पर एक चीज तो है रंजिता जी, ये चीजें है वैसे किताबों में पढ़ने जाएंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है, पर ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. Because many a times we have learned it, but still we are having little bit problem with the queries in these days. आप मेरा परसों का सेशन कर लीजिए एंड आई विल ट्राई टू मेक यू कंफर्टेबल. Yeah. वो बहुत इजी है मैडम, और Thanks. मैं एकदम सिस्टमैटिकली आपको समझा दूंगा. और जो भी डर है आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, शायद मैं 1.5 घंटे में तो आपको वो कम करने की डेफिनेटली कोशिश करूंगा परसों. Yes, sir. Thank you. Thanks. ओके मैडम, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. ओके Sir, मैडम, थैंक यू. okay, sir. See you on Wednesday, sir. No, on just a minute. It is on Thursday. इज ऑन थर्सडे. Yes, sir. Okay. Same timing, 12 थर्सडे 12:30. 27th ना. Yes, sir. ओके ओके, थैंक यू मैम. Okay, sir. Thank you so much from all the participants. Thank you, sir. थैंक यू. And this is about today's session. I have uploaded seminar timetable on Moodle site as well as on our WhatsApp group. You just go through it and we will follow those seminar timetable timings and dates, and just start preparation for your seminar, and please kindly submit your quizzes and assignments on time. So see you tomorrow at 10:30 for our live sessions. Have a good day. Thank you. Thanks. Thank you, ma'am. Bye-bye.